مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا, میں پاکستان فوج سے زیادہ ڈرتا ہوں. تو کس بندے کو ابھی ایون کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں جو پہاڑوں پہ لڑ رہے ہیں, مارواڑی میں ہو گیا, جہاں جہاں پہ ہے, سب کو پتہ ہے کہاں پہ ہے. وہاں پہ آپ کی آرمی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جانے کی. وہاں پہ آپ کی آرمی کبھی بھی, میں نے نہیں سنا کہ وہ وہاں پہ گئے اور دلیری سے انہوں نے لڑائی کی. وہ وہاں سے بھاگ کر آ جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو معصوم بچے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, انہیں اٹھا کر, انہیں شہید کر کے, انہیں فیک انکاؤنٹرز میں, ایون کہ چلو انہیں لے جا کر تشدد نہیں, انہیں یہاں سے خود لے جا کر پھر کہتے ہیں یہ جا کر بی ایل اے کے ساتھ مل گئے. تو یار ہمارے سامنے تو انہیں ایف سی والے جو آپ کی فلٹر کاپس ہے وہ اٹھاتے ہیں. ہمارے سامنے جو ہے سول وردی میں آپ کی جو آئی ایس آئی کے ایم آئی کی جو ایجنٹس ہیں وہ اٹھاتے ہیں. پھر وہ دہشت گرد کیسے بن جاتے ہیں؟ شاید آپ بھی انہیں اٹھا کر سبق دیتے ہو کہ جاؤ دہشت گردی کرو. ہمارے سامنے آپ اٹھا دیتے ہو. کچھ ہفتے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہاڑوں کے علاقے میں آپ انہیں شہید کر کے کہتے بھی شہید ہو گئے. ان کے ہاتھوں میں یار آپ سمجھتے ہو کرونا ہے, وہ شہید ہو گئے, 12 15 بندے شہید ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو ہوتا. جنگ وہ تھی جو پنجگور میں ہوئی, جنگ وہ تھی جو نوشکے میں ہوئی. وہاں پہ آپ ہمیں کہتے کہ بلوچ وہاں پہ لڑے ہیں, آپ وہاں پہ کہتے اگر بلوچ بزدل تھے, آپ ہمیں وہاں کہیں صرف 4 بندوں نے 72 گھنٹے پوری جو دنیا کا 5واں ایٹمی طاقت ہے, جو دنیا کا جس کا آرمی جو آپ کہتے ہو نمبر 1 ہے, پورے 72 گھنٹے صرف 4 بلوچ جوانوں نے اپنے پاکستانی فوج میں آپ اس ٹائم سے 1945 سے آپ لوگ اپنے جو جس نے پاکستان بنایا کہا جاسو, آپ اس کی نہیں ہوئے. آپ لوگوں نے اس کی بہن کو نظر بند کر دیا, آپ لوگ اس کی بہن پر ظلم کرتے رہے. آپ لوگ ہمارے کیا ہو گئے؟ آپ لوگ ہمارا کیا وفادار, ہم جتنا بھی ہم آپ کے لیے وفاداری کریں, ہم آپ کے لیے وہ نہیں کہتی, ہمارے بلوچی کہتی ہے کہ پیٹ پھاڑ دو, وہ کہے گا جس نے اپنا قمیض پھاڑ دیا. ہم کیوں قربانی دیں؟ آپ جب تک جس نے آپ کے لیے پاکستان بنائے اس کے ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا, آپ ہمارے کیا وفادار ہوں گے یار؟ یہ آپ کی آرمی یا ہمارے کیا سچی ہوگی؟ ہم تو انشاءاللہ ہمیں آپ کی حقیقی آزادی نہیں چاہیے, ہمیں تو اپنا ملک ہی چاہیے. انشاءاللہ ہم وہ لے کر ہی رہیں گے اللہ کے حکم سے. ابھی ہاں تھوڑے ہم کمزور ہیں, پر انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا. آپ بھی دیکھو وہ دن جلد آئے گا, ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم الگ ہوں گے. پر یہ بات کہنا انتہائی میرے دماغ میں معذرت کے ساتھ منافقت ہے, یہ کہنا کہ قوم میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہاں پورا قومی غرق ہے. آپ لوگوں کا جو مفتی اعظم ہے وہ کہتا ہے
93,000 शुक्रिया वस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया गोबाज बलूच. बहुत खूबसूरत नाम है आपका और उसके मायने भी इसी तरह के आपकी बातें. देखिए ये बलूच नौजवान है और ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री है. पीआरपी उन्होंने जिस तरीके से बलूचिस्तान की जो हालात हैं या जो कुछ बलूचिस्तान के साथ हो रहा है, उन्होंने जिस खूबसूरती से अपने जिस जज्बे के साथ आपके सामने रखा, तमाम दोस्तों के सामने रखा, इसको समझने की ज़रूरत है. मैं दूसरे दोस्त भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ आऊँगी. डॉक्टर साहब मैं आपको ज़रूर सुनना चाहूँगी. नए स्पीकर हैं हमारे साथ, रेहान, उनको हम सुनते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब वो कुछ जी रेहान. जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें. देखिए मैं तो जो हुबास भाई ने तो जो एक्चुअल में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उसके बारे में तो बहुत कुछ बताया. मैं वो तो आप लोग बेटर ही जानते हैं. मैं बस ये मतलब बताना चाहता हूँ कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है बलूचिस्तान का बाय बीइंग अटैच विद पाकिस्तान, अब वो ना 1950-60 के आसपास आप देख सकते हैं दुबई जो एक फिशिंग पोर्ट था जहाँ पे कुछ नहीं था, गैस या पेट्रोल की डिस्कवरी हुई. 70 साल में दुबई कहाँ तक पहुँच गया है. मतलब देयर वाज नो डिफरेंस, वो तो डेजर्ट था बिल्कुल. तो पाकिस्तान के साथ अटैच होने की वजह से 1950 के आसपास हुई गैस वगैरह चालू हुए हैं. तब से पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके वजह से उनकी पॉपुलेशन 4 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ 25 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और वो फ्री में गैस जला रहे हैं. अगर पीआरपी भाई जो हैं, ठीक है, ही सीम्स टू बी अ कंसर्न पर्सन, अगर वो एक बार ये भी बोलना चालू कर दें कि देखिए बलूचिस्तान के पास गैस है, नेचुरल रिसोर्स भरा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान जो फ्री में एंजॉय कर रहा है, जो मेनलैंड पाकिस्तान है, जो पंजाब का जो प्रोविंस है जहाँ पे लोग भरे पड़े हैं, अगर वो ये भी बोलना चालू कर दें कि हाँ ठीक है, आप अभी 800 रुपए पर किलो के हिसाब से गैस बिक रही है अभी पाकिस्तान में गैस के प्राइस बढ़ने के बाद, अगर आप ये बोलना चालू कर दें कि हाँ बलूचिस्तान को हम तो इतने दिनों में कुछ नहीं दे पाए, उनको लेट्स अलाउ देम टू एक्सपोर्ट गैस फ्रॉम बलूचिस्तान टू. I don't know any other place. कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग में खड़ा करके बैठे हुए हैं. तो आप ना ये कभी भी आके सोल्यूशन जब बताए ना तो कुछ क्वांटिफाइबल बोले कि जो हाँ मैं नहीं, ये मिसिंग पर्सन्स गलत है, ये ना ये सब बोलते हैं, पर उसको फिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए? फौज को हटा दो बलूचिस्तान से, आप वो कभी भी ट्वीट भी नहीं करेंगे. आप बस यही बोलेंगे कि ये गलत है, वो गलत है, मिसिंग पर्सन गलत है, वहां पे गलत हो रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है. तो अगर आप सच में कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ट्वीट कीजिए जो कि क्वांटिफाइबल हो, जो जो काम करने से एक्चुअल में लोगों के पब्लिक लाइफ में कुछ चेंज आए. वैसा कुछ ट्वीट कीजिए या ऐसा कुछ बोलिए कि हाँ मैं सपोर्ट पे हूँ कि एफसी को हटा दो बलूचिस्तान से, वहाँ की लोकल पुलिस जो करना है वो करेगी, ऐसा कुछ बोलिए. पाकिस्तान के साथ रह के ऐसा कुछ कर सकते हैं, वैसा कुछ बोलेंगे तो लोग सुनेंगे आपकी बातों को, नहीं तो आप ना ऊपर ऊपर से सुना रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं. थैंक यू सो मच.
बहुत शुक्रिया आपका रेहान, आपने बहुत अच्छे से बात की। बिल्कुल आप हम भी यही कहते हैं कि ये कहना बहुत आसान होता है। जो भी नई पार्टी आती है या कोई भी लोग आते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो इस बात को हमेशा तस्लीम करते हुए आते हैं और एक नारा भी लेकर आते हैं बलूचिस्तान के लिए, कभी पैकेजेस की सूरत में लाते हैं, कभी मुख्तलिफ हमदर्दियाँ साथ में लेकर आते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो वो प्रैक्टिकल हमें कहीं भी आस-पास नज़र नहीं आते। जी, नागुल कुछ आप बात करें, उनके नेटवर्क का इश्यू होता है। फिर डॉक्टर जय साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ और फिर कुछ नए स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं, फिर उनको सुनते हैं। जी, नागुल जी आप बात करें। Minnatwaran bana kuma ya gappe mi janagotu ma urdu acho ikanadana ma baluchi bashani ma mi usha mana absurdu ya gappe mana ke hamdaga ke tekjana absurdu bu ke ayani hame mufti hasta hamara alami din तारिक जमील अभी मिसिया के सवाल पर हमने जवाब दिया वो सियासी लीडर कहाँ हैं या मतलब माची कहाँ हैं विषय के मिला के बलूचिस्तान है या सिंध है या देखिए मुल्क की अगर वक्त गप्पा बिजना ونعاوشي ماتين جول مثلا جول في الدنيا تبرج पूरे गोल निजाम ما يكفي كنا من قلتنا وقول إن النظام يكفي كنا يا ما بايع نبا رندی گپے مرا افسوس میں ہمیں چیزا کم ہوش کہ ہم بی بی سی آر انٹرویو والا ہمیں جواب ملے اگر اونی تاریخ ما کیوشن تاریخ جمیل اونی عالم دین ومرشي سياسي ليدر بشي ما پورا بلوچستان تربته گپا نجنا گوادر گپا نجنا ما پورا گلگت کشمیر پورا سب عجیب دنیا ہے سوال جواب ما ہمیں چیزا منا کم افسوس میں نتوارا سلامت بات ہے थैंक यू वेरी मच नादिर साहब और हानी जी। देखिए पीआरपी ऑफिसर जो हैं मेरे दोस्त, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका। मैंने इनकी वेबसाइट अभी देखी है, हालांकि अभी प्रिमिटिव स्टेज में है। इसको ये अपडेट करना चाहिए क्योंकि जब भी नया पेड़ लगाते हैं तो उसकी उसकी जड़ों में आपने क्या डाला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अभी उसमें ये नहीं लिखा है कि क्या आपका मिशन स्टेटमेंट है, क्या विजन स्टेटमेंट है, क्या रिफॉर्म के क्या पॉइंट्स हैं आपके, क्योंकि आपने पार्टी का नाम पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी रखा है, तो क्या रिफॉर्म लाना चाहते हैं, क्या चीज़ मिसिंग है, आज क्या हो रहा है जो आप नहीं चाहते और क्या आप नए लाना चाहते हैं। क्योंकि 20 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट इमरान खान कर चुके हैं। उन्होंने अपना पार्टी का नाम रखा था इमोशनली, मतलब उस वक्त जो है शिद्दत में आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मगर किसी को इंसाफ मिला है? आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी अभी 2 साल पहले या 1 साल पहले, उसी वक्त ही तो 150 लाशें हॉस्पिटल के ऊपर पड़ी हुई मिली थी। मैंने उनको ट्वीट किया था कि कम से कम ये तो बता दीजिएगा ये किसकी लाशें हैं। इन लोगों को बता दीजिएगा ये किनके कौन लेडीज हैं, ये ये बलूचिस्तान के कपड़े पहने हुए लोग हैं, ये जरा इनको बता दीजिएगा। आपकी तो तहरीक इंसाफ पार्टी है, इंसाफ दे दो इनको। आपको आपने ये पेड़ लगाया इंसाफ की बिना पे, इंसाफ के लिए, तो दीजिएगा इंसाफ। मैंने कई उनको ट्वीट लिखे हुए हैं कि आपसे इतनी उम्मीद है कि आप एक यंग ब्लड हैं अभी भी, और आपने जो पार्टी शुरू की थी इसलिए शुरू की थी क्योंकि जो बाकी पार्टियां थी वो सब खाने पीने वाली थी। आपने एक ईमानदारी और न्याय यानी जस्टिस के ऊपर, आपने इंसाफ के ऊपर आपने पार्टी बनाई थी। तो लोगों को ये आइडिया बहुत अपील किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी आप वहीं पे घुल के वहीं आ गए। फिर आपने भी वही एजेंडा, वही बिल्कुल वही किया। आप भी अपनी ऐश में लगे रहे, अपने पर्सनल एसेट्स को आप भी बढ़ाते रहे। तो उन्होंने भी कोई बलूचिस्तान के लोगों को, उनकी बच्चों को, उनकी लेडीज को जो सड़कों पे यंग लड़कियां बैठी हुई हैं फोटो लेके, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं गए पूछने की क्या हुआ तुमको, क्या परेशानी हुई।
तो मेरे दोस्त, आप एक नया पेड़ लगा रहे हैं, नौजवान हैं आप भी, आज से 20 साल बाद आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसकी बुनियाद आज आपको रखनी पड़ेगी। क्लियरली लिखना पड़ेगा, ससिंक्टली लिखना पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे कि जो अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर, मैं नहीं होने दूंगा। ये जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं ये हमारे लोग हैं, चाहे वो बलोचिस्तानी हैं, बलोच लोग हैं या सिंधी हैं। लिख के दिखाओ, आप हिम्मत तो करके दिखाओ। और साफ साफ लिखना पड़ेगा कि ये जो डाकू आपको सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं ये आपके नहीं हैं। जो यहाँ से छोड़ के सबसे पहले रिटायर हो, सबसे पहले भाग जाते हैं फ्लैट लेके लंदन में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, ये कौन लोग हैं, इनको डिफाइन करो आप। वो कौन है जनरल खयानी जो इतना पैसा लेके इतनी लैंड बाहर लेके बैठ गया है? कोई भी ऐसे लोगों को तो गद्दार आपको डिक्लेयर करना चाहिए, जो अपनी मिट्टी को छोड़ के चला गया, अपनी माँ को छोड़ के चला गया और सारी जिंदगी उसी के ऊपर खाता रहा कि मैं इस मिट्टी की सेवा करूंगा, मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगा। हमारे यहाँ इंडिया में तो कभी भी नहीं हो सकता ऐसा कि कोई जनरल छोड़ के बाहर जाके बस जाए, भाग जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबके सब अपनी 4-4 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं जनरल से रिटायरमेंट के। मेरा तो एक दोस्त है, मेरा क्लासमेट था, जनरल से रिटायर हुआ अभी, 4 बेडरूम के फ्लैट में रहता है द्वारका। तो आपके जो जनरल जो है वो बड़े बड़े प्लॉट लेके 5-5 एकड़ के कॉर्नर के प्लॉट लेंगे और उनके बच्चे सब बाहर पड़ेंगे। अरे भाई किस लिए, कौन लोग हैं ये, इनको डिफाइन करो आप। ये तुम्हारे लोग कैसे हो सकते हैं ये जो सबसे पहले छोड़ के भाग जाएंगे? दूसरी बात, अगर तालिबान ने अटैक किया तो ये सबसे पहले अपने बिजनेस ही बचाएंगे, आपको नहीं बचाएंगे। उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे कि हमारी इस पे हमारे पॉपकॉर्न की फैक्ट्री पे बम मत लगाओ, आपको थोड़े बचाएंगे ये, क्योंकि बिजनेस में इन्वॉल्व है ये। फौजी अगर बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है इसका मतलब वो लालची है, वो सौदागर है, वो सौदा कर लेगा, सौदा करके बाहर भाग जाएगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, आप समझते क्यों नहीं है कि किसकी बिना पे आप रह रहे हो, आप किनकी पनाहों में आप रह रहे हो, कि आपकी पार्टी कैसे खड़ी हो सकती है? जब 20 साल 25 साल का ये जो नौजवान जो उस वक्त तो यंग था ना, ये दो ही वाज ए प्ले बॉय, ही डिड नॉट क्रिएट एनी वैल्यू एनी मॉरल, लेकिन उसके बाद भी चलो पाकिस्तानी लोगों ने उम्मीद सोची कि नया आदमी है, उसको हालांकि नॉलेज नहीं है फिर भी, लेकिन फिर भी उनके लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि चलो भाई यही सही, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। बाकी सबको देख लिया, बाकी ने 2 फैक्ट्री के बदले 20 फैक्ट्री खड़ी कर ली, अब इसको देख लेते हैं। एक जो जनरल है, जो नंबर 1 जनरल है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो उसके पास 12 करोड़ से उसके पास 1200 करोड़ हो गया रिटायरमेंट के बाद। कहाँ से आया है पैसा? ये सारा एड का, लोन का, वही तो पैसा है, आपके एजुकेशन का पैसा। आपको अपनी वेबसाइट पे क्लियरली लिखना पड़ेगा, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होगी एजुकेशन। लोगों को एजुकेशन ही नहीं है, क्योंकि उनका माइंड इस तरह का पूरा इंडोक्ट्रिनेट कर दिया गया है, कंटेमिनेट कर दिया गया है कि तुम्हारे अलावा जो लोग हैं वो सब नफरत के काबिल हैं, सब बेकार लोग हैं, तुम असली खुदा के बंदे तुम हो, तुमसे बढ़िया कोई नहीं है। बस वहां पे बात वहीं पे खत्म होगी कि वो उनको पता कोई स्किल डेवलप हो रही है ना नेशनल लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी की नहीं हो रही है, लेकिन 90% लोगों की नहीं हो रही है। जो 10% की हो रही है वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो जब जनरल, वहां का जनरल ये एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा, वो आपका रोल मॉडल नहीं हो पा रहा, तो किस बात का जनरल है? मुझे ये बताइएगा। उनसे ये सवाल कीजिएगा कि तुम्हारे लोग यहाँ छोड़ के क्यों भाग जाते हैं इस मिट्टी को छोड़ के। सवाल सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे टॉप पे ये आना चाहिए। रिफॉर्म किस बात का रिफॉर्म ये है कि जो जनरल सारी जिंदगी खाता है इस बात का कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, मैं आपसे पैसे इसलिए ले रहा हूं, मैं 1200 करोड़ मैंने इसलिए बचाया है कि मैंने आपको सुरक्षा दी है। तो आप यहां से छोड़ के कैसे भाग सकते हैं? सबसे पहले टॉप पे ये लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी, सबसे पहले तो हेलो टू एवरीवन। अच्छा यार, मतलब बहुत अच्छा सवाल है ये। मेरा क्या कहते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद तो हम पिछले 75 साल से ही हैं। बहरहाल ये एक प्रोपेगेंडास हैं जो मतलब दुश्मन ममालिक, हमसाया ममालिक और ये चीज़ करते रहते हैं, तो इसकी तो खैर कोई बात नहीं है, ये नॉट अ बिग डील। और
ये बलूचिस्तान जी देखिए पॉलिटिक्स ये यार हर मुल्क जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हर देखिए पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है हर मुल्क में ये चीजें होती हैं और क्या कहते हैं हर मुल्क में ये पॉलिटिशियन ऐसे करता है वो तो मतलब पॉलिटिकल स्टंट लेने के लिए और मतलब देखिए हर जगह हर मुल्क में क्या कहते हैं पीछे एजेंसीज इंटेलिजेंस ही अपनी गवर्नमेंट को और ये इन लोगों को पीछे मतलब बैकअप करती हैं जैसे इंडिया में रॉ है और क्या कहते हैं ये भी मोदी को कंट्रोल कर रही है जो बाइडन को सीआईए कंट्रोल कर रही है तो ऐसे हर जगह होता है ये तो मतलब कोई बात ही नहीं है जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो ये अच्छी तरह ये बात समझ सकता है कि क्या होता है हर मुल्क में तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना और मतलब ये आप इसी चीज पे बात कर रहे हैं ये तो यार कोई बड़ी बात नहीं है हर मुल्क में हर जगह पे फौज का हाथ होता है ठीक है तो अगर आप यही रोना शुरू कर देंगे कि मतलब फौज 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 अगर यही फौज ना होती तो क्या कहते हैं ये पाकिस्तान आज मतलब ऐसे ना होता इसी फौज की वजह से तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये और मतलब आज अपने पैरों पर इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगा हर मुल्क में एक अवाम जब तक इस मुल्क की अवाम सीधी नहीं होगी ठीक है किसी को सिंधु देश बनाना है किसी को बलूचिस्तान अपना अलग बनाना है किसी को खैबर पख्तूनख्वा अलग बनाना है तो नॉट यार ऐसे तो नहीं मतलब चल सकता ना तो एक तरफा बात हमेशा ये चीजें आप क्या कर लेंगे मतलब आपको मुल्क चाहिए कि किस लिए चाहिए वन ऑफ द आप आपको क्या नहीं मिल रहा इस मुल्क में ठीक है 1% बलूचिस्तान में 100 में से 0.1% लोगों को आजादी चाहिए और उनकी को बात को मायने नहीं रखती ठीक है बलूचिस्तान ने अवाम से पूछना चाहिए ना बलूचिस्तान की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है बीएलए को और ये लड़के तो मतलब ऐसे अगर आप आजादी करेंगे तो मतलब ये कोई ऐसे कोई प्लेट हलवे की प्लेट थोड़ी है कि उठा के दे दो जी ये नया मुल्क बन गया तो मतलब ऐसी बातें देखें करना और स्पेसेस में तो मुझे तो कोई इधर बलोच दिख ही नहीं रहा मतलब सारे इंडियंस हैं तो ये तो सीधी बात सारी सारा मतलब क्या कहते हैं मुझे बलोच भाई इधर दिख ही नहीं रहा जो जिसे मैं सुन सकूं एजुकेशन बलूचिस्तान को दी गई ठीक है अब दी जा रही है दी गई है ठीक है और क्या क्या हिमाचल प्रदेश और पता नहीं कहाँ कहाँ वो आसाम और कश्मीर तय तो और हर मुल्क में अपनी मतलब इस्टेब्लिशमेंट का फौज का इंटेलिजेंस का हाथ होता है ये कोई बड़ी बात नहीं है कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो वो समझ सकता है कि क्या होता है मुल्क में क्या नहीं होता अपना इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए ठीक है अपना कंट्री का इंटरेस्ट है जो वो अब अगर ये डेमोक्रेटिक पार्टीज आके करने लग गई तो ये तो बेड़ा गर्क हो गया इंडिया में भी बेड़ा गर्क हो गया अगर मतलब वो बीजेपी ने वैसे भी किया हुआ है ठीक है अगर ऐसे ही पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक पार्टीज आके करने लग गई ठीक है सियासतदान अपने मतलब आके ये वो एजेंडा प्रमोट करने लग गए तो भाई आपने फिर पाकिस्तान मुल्क चला लिया इंटरनेशनल मुल्क चला लिया फर्स्ट ऑफ ऑल आप एटॉमिक पावर है आपको हर जगह अपने इंटरेस्ट देखने हैं अपनी चीजें देखनी है ठीक है तो यार ये मैं क्या कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है हाँ नहीं आप हंस रही हैं खैर कोई मसला नहीं मैंने अपनी बात बोलनी थी वो बोल दी है तो इस चीज का स्पेसेस चलाने का ये फायदा ये मतलब ये नॉट ये जस्ट इज अ बुलशिट दिस स्पेसेस इज अ बुलशिट ओके What the fuck is this
Nadir, stop the fucking bullshit. पंजाबी मैं पाकिस्तानी हूँ, तमीज से बात कर मेरे साथ, मैं पाकिस्तान जिस तरह कतर में तुम लोग भागे माज भाई इंडियंस आगे फैसला नहीं करेंगे हमारे मुल्क का, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, तुम लोगों के जो रात दिखाओ कहाँ गए हैं ऐसे ही यार, मतलब खबरें इधर खबरी बने हुए, वही मोदी मीडिया, गोदी मीडिया और ये चीजें आप लोग बुलशिट करी जा रहे हो। चलाओ उस पे इस हद तक मतलब किसी कौम को सियासी काफी टाइम से खामोश है, मैं चाहूँगा वो बात करें और फिर होगा मेरी बात करने को बाकी सब आपको बड़ा मुश्किल से देना चाहिए और जो दोस्त मुद्दा आना चाहते हैं हमारा बात ये क्या और जोड़ते हैं पाकिस्तानियों की आज़ादी पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है स्पेशल नहीं है और वो दीगर आज़ादी की तहरीकें हैं जो कि पाकिस्तान का पाकिस्तान की कश्मीर से लेकर सब ये सब पाकिस्तानियों से है तो पाकिस्तान का पूरा क्या क्या उनका है क्या जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें रहते हुए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंजॉय कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को इंजॉय कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद करवा सकते हैं, तो सवाल ये बात पूरा होगा नहीं होगा ये अपनी मतलब में आप बात करें फिर दो बात और शुक्रिया, तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ और स्पेशली याद रखें कि हम पाकिस्तानी हैं। हम कभी भी मैं बज़ाते खुद हमारी पार्टी या हम माशरे में कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम नफ़रतें बढ़ाएं या जंगों में आएं या अपने मुल्क में किसी और को बर्दाश्त करें। स्पेशली कई अरसे से जो मुझे रिपोर्ट है कि कई लोग अरेस्ट हुए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो बात ये कि हमें मुश्किलात हैं, हमें मुश्किलात में डाला गया है, इससे हमें निकलना होगा और निकलने के साथ साथ हमें अपने मुल्क को मज़ीद माशी मजबूती के लिए इक़दामात करने होंगे। और ये बलोच या मैं खुद एक पश्तून कबायली हूँ, मैं आप लोगों को वाज़े कर दूँ, मैंने तो कभी भी नहीं कहा, हालांकि डैम में तो मेरे परदादों की कब्रें गई हैं, मैंने तो कभी एहतजाज नहीं किया। क्यों? कि उस डैम से मेरा मुल्क मुस्तफ़ीद हो रहा है, मेरे मुल्क की बिजली बन रही है, मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है। हमने तो इस नज़रिए से पूरा 5000 गाँव तो सब खामोश बैठ गए कि नहीं कोई बात नहीं। बात ये कि कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी के बाद ही हाँ आज अगर ये मुश्किलात आई इनको बैठे। अभी आपने बात की कि हमारा एक इनकाउंटर हुआ, हमने MP-MNA को पकड़ा, तो उसी MP-MNA को कान पे आप रख के मारते कि भाई आप आवाम के नुमाइंदे हो, हमें ये मसाइल हल करके दो, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज आप लोग एक अलग डायरेक्शन में नहीं जाते। बाकी ये कि मेरा पैगाम हर पाकिस्तानी के लिए वाज़ेह है कि मेरे पास किसी भी रंग और नस्ल तासुबी और सियासी फिरकावारियत से बालातर होकर पाकिस्तान को पुरअमन माशी स्टेट मजबूत स्टेट बनाना है। उसमें कोई बैरियर नहीं कि किस कौम से हो आप, किस मज़हब से हो, किस फ़िरके से हो। हमारी इस वक्त जंग पाकिस्तान को पुरअमन बिजनेस स्टेट बनाने की है। शुक्रिया। सर बहुत अच्छी बात कही आपने। कुर्बानी सर वही तो हम कर रहे हैं। ये 75 सालों से हम कुर्बानी ही दे रहे हैं
हम अपने संदक में हम सोनों की कुर्बानी दे रहे हैं, सुई में हम गैस की कुर्बानी दे रहे हैं, कोयला की कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपने पहाड़ों की कुर्बानी दे रहे हैं। हमने इतनी कुर्बानियाँ दी है सर, जितना आप मतलब आप कह रहे हो कुर्बानी, आपकी भी बातें अपनी जगह सही हैं, आप जो बातें कर रहे हो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट सर हमने बहुत आजमाया सर, इवन कि आप देखें एक बलोच जो होता है वो जैसे नवाब अकबर खां बुट्टी को आप ले लें, वो क्या थे, गवर्नर थे बलूचिस्तान के। तो सर वो पहाड़ों पे क्यों गए? देयर इज़ अ रीज़न है सर, एक रीज़न होता है सर। और अभी जो मुरीद रहमान जो थे वो भी आर्मी के थे, वो आर्मी छोड़कर पहाड़ों पे क्यों गए? और हमारे कुछ शादाब जो स्टूडेंट्स थे, आफ्ताब, वो पढ़ते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में सर, वो छोड़कर क्यों गए? देखिए सर, हर चीज़ को आप ये नहीं कह सकते, मतलब जैसे इस भाई ने कहा कि रॉ एजेंट ये। देखिए अभी मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ सर, आप मेरे पॉइंट्स नोट करते जाना। अभी अगर तालिबान को कुछ लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तानी तालिबान, सर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अगर देख लें तो जो तालिबान है उनमें 40 to 35% जो है लोग वो पाकिस्तान से है। इवन कि मेरे खुद के कुछ नेबर सर, अलानूर है और यूसुफ सोमालानी है, ये मेरे पास, इनके घर बिल्कुल मेरे पास है, ये खुद उन्होंने लड़ाई, एक तो उनका शहीद हो गया, एक अभी भी जिंदा है वहीं पर है। तो और इवन कश्मीर में देखिए वहाँ के सारे फाइटर्स जो है वो पाकिस्तान आर्मी के हैं, जो ट्रेन पाकिस्तान आर्मी करके भेजता है कश्मीर में जिहाद के नाम पर। तो सर आप बलूचिस्तान में देखिए, आप मुझे एक ऐसा बंदा बताएं जो इंडिया गया है या जो बल्कि जिसका नेशनलिटी इंडिया का है वो आया यहाँ पे लड़ने। सर सारे मैं वाजे कर दूँ, अभी अभी एक गया है बिलाल बलोच, वो मेरा अच्छा खासा जानने वाला दोस्त था। तो सर ये जो होती है ना माइंड सेट हम लोग रॉ एजेंट, सर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए किसी को सताया जाता है, जो डॉक्टर अल्लाह नजर थे वो क्यों गए पहाड़ों पर, उन्होंने लड़ाई का रास्ता क्यों अपनाया सर? आप ये पॉइंट नोट कर ले, उन्हें नंगा कर दिया गया। और हम कासिम सवाती या हम शहबाज गिल नहीं बन सकते सर कि हमें नंगा कर दिया जाए, हम हंस के कहे यार हमें तो नंगा कर दिया गया। ये तो हमारे लिए फख्र की बात है। हम अपने इज्जत के लिए एक पाकिस्तान क्या ऐसे 1000 पाकिस्तान हम जला सकते हैं। हम कासिम सवाती नहीं बन सकते कि अल्लाह ना करे हमारी ऐसी वाइफ्स के साथ हमारी ऐसी वीडियोस बना के वायरल कर दी जाए और हम चुप करके हम कहे यार ये उन्होंने ये किया। सर हम बलोच हैं, हमें अपना हक, अपना जो कंट्री है, जो आप अगर हिस्ट्री पढ़ दे तो आप हिस्ट्री खुद आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं आप, जिस मुआहदे के तहत जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हुआ था मुआहदा, सर वो ऐसा चल ही नहीं रहा। चलो अगर हम मान भी लेते हैं कि हम हैं पाकिस्तानी, तो हमें क्या हकूक दिए जा रहे हैं? इवन आप देखें पंजाब का कोई आदमी उठकर कहता है बाजवा ट्रेटर, बाजवा कुत्ता, वो गाली देता है, उसे कुछ नहीं कहा जाता। मैं अगर उठ के सिर्फ ये आसिफ गफूर नहीं है जो क्या कहते हैं को कमांडर बलूचिस्तान, मैं सिर्फ उठकर उसके खिलाफ एक बात करूँ, मैं अभी अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या कहते हैं ट्विटर पे अपनी आइडेंटिटी के साथ सिर्फ एक बात मैं उठकर करूँ, कसम अल्लाह की सर आप मुझे कल यहाँ पे नहीं पाओगे, फिर एक हफ्ते बाद आप मेरी पिक्चर्स देखोगे मिस यू वाले। तो ये आखिर क्यों? इंसाफ तो सबके लिए इंसाफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको पंजाब में मिलता है और आपको सिंध और बलूचिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलता। ये कौन सा हक की बात है? अगर हम एहतजाज करना पूरे दुनिया में, बल्कि आप खुद को मुस्लिम कहते हो, हज़रत उमर के दौर में, हज़रत उस्मान के दौर में, मौला अली के दौर में, वहाँ उस टाइम भी एहतजाज हुए थे कुछ चीज़ों के ऊपर, उन्होंने तो कभी नहीं कहा यार इसको मारो। और मुफ्ती जो आप लोगों के मौलाना है वो कहते हैं कि रियासत के खिलाफ इक़दाम उठना ये दहशतगर्दी है। हाँ मैं भी कहता हूँ, पर रियासत वो कहते हैं रियासत माँ होती है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। ये नहीं ये बलोच है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, उसके लिए फिर सब बराबर हो ना। बलोच की मर्जी वो अपना गैस दे किसी को ना दे, बलोच की मर्जी वो संदक से सोना चाइना को निकालने का दे ना दे, बलोच की मर्जी वो ग्वादर पे किसी को छोड़े या ना छोड़े। इवन के ग्वादर के बलोचों को इतना खा गया यार, तुम 2 घंटे तुम समंदर पे मछली के मतलब शिकार करने जाओ, बाकी चाइना आएगा करेगा। भाई चाइना का क्या मतलब? हमारा समंदर
उस टाइम पाकिस्तान का नाम वो निशान नहीं था। वो बलोच उसी टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं, वो बलोच उसी टाइम से उनका वही रस्म है, वो जाकर वहाँ से मतलब मछली शिकार करके और वो अपना घर चला रहे हैं। पे उसको बंद कर देना, वहाँ पे फौजी छावनी बनाना, ये तो कहीं का नहीं इंसाफ हुआ सर। इवन आप कभी आप यहाँ पे कोयठा में आए, आप देखिए हर जगह आपको, इवन मेरे घर के सामने सर, मैं निकलता हूँ, मेरे घर के सामने एफसी चौकी है थोड़े ऊपर, वो मुझे रोकते हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। यार मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरा मकसद मेरा घर है, मैं अपने घर में कहाँ से आऊँ, कहाँ जाऊँ। अगर आप कहो, आपको इवन चलो पहले बार आपको रोक लिया, ये रियासत का काम है इंसान को मतलब देखे यार ये कैसा इंसान है, नहीं, उसने तुम्हें पहचान लिया, फिर हर दिन जबरदस्ती आपको रोके, आपसे पूछे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। सर अभी मैं अगर आपके घर के पास आऊँ, आप कहते हो आप पश्तून हो, मैं आपके घर के पास आऊँ और आपके घर के पास मैं अपना घर बना लूँ, आप वहाँ से निकलो, मैं आपको पकड़ लूँ, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और अगर आप कह दो आपका क्या काम, मैं आपको थप्पड़े मार दूँ, आपको गाड़ी में बिठाऊँ, आपके थाने ले जाऊँ, आपको हफ्ता हफ्ता टॉर्चर करूँ, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार नहीं, रियासत है, रियासत सब कुछ कर सकता है। सर हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें हकूक जो आप लोग कह रहे हो, वो हकूक के लिए हमने बहुत पहले कोशिश की। अकबर नवाब अकबर खान बुट्टी जो शहीद हो गए, वो कोई पागल नहीं थे सर, वो कोई दीवाने नहीं थे कि वो गवर्नरशिप छोड़कर वो पहाड़ों पर चले गए, उन्होंने आर्मी को चैलेंज कर दिया कि आ जाओ मेरे साथ लड़ो। क्या जरूरत थी बालाचमरी को लड़ने की, क्या जरूरत था किसी और बलोच को, डॉक्टर नजर अच्छे खासे एजुकेटेड बंदे जो डॉक्टर है, उनको क्या जरूरत थी सर पहाड़ों पे जाने की? क्योंकि उन्होंने देखा हम एक बलोच जो होता है, जो ओरिजिनल बलोच, वो गैरतमंद होता है, उसे गुलामी कभी नहीं बर्दाश्त होती। और अभी आप जो कहते हो कि आप इंडिया, नहीं, इंडिया हमारा दोस्त है, हम ना इंडिया की गुलामी करेंगे ना पाकिस्तान की। हाँ, कोई हमारा इस टाइम में हमारे सख्त वक्त में कोई हमारी मदद करता है, हम तो उसकी वाह वाह करेंगे, वो हमारा दोस्त होगा। फिर वो अगर हमारे उसका उसका सख्त उसका जब वक्त आएगा तो हम अपना क्या कहते हैं, अपना खून का एक एक कतरा उसके लिए कुर्बान कर देंगे, हम क्यों नहीं देंगे। इस टाइम अगर इंडिया हमारे साथ है, इंडिया को छोड़ो सर, इस टाइम कोई भी, इवन कि बहुत सारे यहाँ पे पंजाब के हैं लोग, ये आते हमारे स्पेशल्स में, वो हमारा साथ देते हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। हम यार सद्दाम भाई, जी जी स्पीकर को ऑफ करना यार प्लीज, आपको मौका मिलेगा बात करने का। हम उनको भी अपना साथ देते हैं। बहुत से आप लोग कहते हैं ये रो एजेंट, कुछ नहीं है, हाँ हमारा वो हेल्प करते हैं, हम उनकी, हम ऐसा फरामोश नहीं है, हम नमक हराम नहीं है, हम कोई ऐसा चीज़ नहीं करते कि अपने दोस्त को हम धोखा दें। जो हमारा दोस्त है, अंदरूनी भी हमारा दोस्त है, बहरूनी भी हमारा दोस्त है। हम तो कहते हैं यार इंडिया हमें सपोर्ट, अगर इंडिया कर रहा है तो इंडिया हमें सपोर्ट करे। कल को बलूचिस्तान, अगर बलूचिस्तान की आज़ादी होगी, जो मदद हमसे होगा हम इंडिया की करेंगे। ये हम तो अभी भी कहते हैं, ये तो दोस्ती सर उसी टाइम से आ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि यार ये है, वो हमारी मदद कर रहे हैं हमारे सख्त वक्त में, हम इस पे अप्रिशिएट करते हैं। इवन आप हमारी मदद करोगे हम आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। हम पंजाबी इसलिए कहते हैं कि आप जैसे ही आप अगर देख लें तो 71 में भी मुजीबुर रहमान के सीट ज़्यादा थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था, बट वहाँ भी पंजाबी फौज ने भुट्टो को आगे किया और आगे करते ही ये सब कुछ हुआ। तो सर मेन मकसद ये है, कुर्बानियों की जो आप बात कर रहे हो, वो कुर्बानियाँ हम ऑलरेडी दे चुके हैं। हम अपने बहुत, असलम बलोच जैसे वो खुद कुर्बान हो गए, उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, हम कुर्बानी ऑलरेडी दे चुके हैं, अभी कुर्बानी हमें मजीद नहीं देनी, अभी हमें जंग लड़नी है। अभी अगर हम कुर्बान हो रहे हैं तो अपने साथ 5-6 कुर्बान और भी करके ले जाएंगे अपने साथ पंजाबी। अब हम अकेले कुर्बान, अभी वो निस्तर हॉस्पिटल के ऊपर आपने देखे लाशें सर, कोई आप में से किसी ने आप बताए, आप कहते हो मैं पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, आप में से कोई से सद्दाम को दिखाए जिसने उसको सख्ती से लिया, जो गया न्यूज़ पर, जिसने आवाज़ें उठाई? नहीं, बस एक ट्विटर अफसोस होता है सर, हम आपके अफसोस को क्या करेंगे, आपके अफसोस का हम अचार डालेंगे? आप उठो, बात करो। हम अगर पाकिस्तानी, इफ यू आर पाकिस्तानी, तो आप हमारे लिए स्टैंड लो ना। जो हमारे बच्चे यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, निज़ाम कुर्द का क्या काम था यार, मेरा दोस्त वो शहीद हो गया, उसे
उसे इतनी बेरहमी से मारा गया, इवन उसका अभी एक 4 महीनों का उसका बेटा था, क्या उसकी गलती थी, उसे शहीद कर दिया गया। और इवन फिर आप कहते हो कि हम फिर भी हम कहे कि रियासत क्या करेगी रियासत यार सिवाय जुल्म जबर की, और रियासत ने दिया क्या? आप मुझे एक अच्छा इकदाम बताए इस रियासत का, स्पेशली आर्मी का, आप मुझे एक अच्छा इकदाम बता दें, मैं आप मुझे कायल कर दे, मैं आपको कायल कर दूंगा कि उसने कितनी गलीज हरकतें की हैं, कितनी गंदे काम किए हैं उन्होंने। तो सर आप हमें ना, आप हमें ना जो हमारे फीलिंग्स आप उनको भी समझे, जो हम पे गुजर रही है वो आप जरा देखें। कोबाश, आप हमारे साथ रहें, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, आपकी बातों की कदर करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। साइलेंट ने काफ़ी टाइम से हैंड रेस किए हैं और सद्दाम बलूच भी हमारे साथ हैं, और मैं चाह रही हूँ कि PRP साहब ने भी हैंड रेस किया है, डॉक्टर जे भी वेट कर रहे हैं। साइलेंट आप बात करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी साइलेंट, आप बात हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? आप बात करना चाह रहे हैं? उसकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या मुझे बोलने की इजाज़त है? जी जी, मैं आपको ही कह रही हूँ। जी साइलेंट आप बात करें कैंडी। जी शुक्रिया, थैंक यू, आपने मौका दिया भाई कि मैं बातें सुन रहा था। चलें, ये अपना नुक्ता नज़र होता है, इख्तिलाफ राय होता है, सब कुछ होता है। तो क्या मैं पूछने का हक रखता हूँ? पहली बात ये भाई बता सकते हैं आप मुसलमान हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन होता है मौजूद दुनिया में, किसी से एक उसका रिलीजन पूछना ये सॉरी, पाकिस्तान में है, मुसलमानों की कंट्री में है, आप भी मुसलमान हैं, बलूचिस्तान की ज्यादा पाकिस्तान में हिंदू भी है, पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी है, पाकिस्तान में जीव भी है, सही है सब बलोच। ये पर्सनल ही एक मामला है। आप बताएं कि आप आज के टॉपिक के हवाले से क्या बोलना चाहते हैं? इसको खिलाफ हम आप बात कर रहे हैं, हमने आपसे आपका मजहब पूछा, हमने आपसे आपकी हमारे यहाँ जो है ना सबसे ना, कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, वैसे है, ये मुख्तलिफ जो कौमें हैं ना, सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पर इकट्ठी हुई हैं, इसलिए पाकिस्तान, बाकी पाकिस्तान का तो फिर तसव्वुर ही नहीं बचता अगर मजहब ना बचे ना, तो इसलिए मजहब पूछा। ठीक है, चलें आगे। बात ये है कि भाई ने काफ़ी बातें कही हैं। देखें कि सबसे पहले तो एक बात ये मैं डिसएग्री करता हूँ, जो कि इन्होंने कहा कि अंदर ये वो इस तरह के। भाई आपको पता है जिहाद जो कश्मीर की तहरीक है वो कौन उठा रहे हैं, और जिहाद क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा चले आ जाए। दूसरी बात आपने ये कही कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादती होती है, ये होता है, वो होता है। भाई आपको पता है कि पंजाब के अंदर या दूसरे सूबों के अंदर ये जो अंदरूनी मामलात हैं ये तो हर जगह होते हैं। ठीक है, अब आपको इसका सलूशन मैं बताऊं, अगर आप मुसलमान हैं तो ये बात याद रख लेना, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, बड़े बड़े जुल्म किए हैं, जो बादशाह वक्त के थे ना, बड़े बड़े जुल्म किए हैं, लेकिन आप उन्होंने खरूज नहीं किया। अगर खरूज करेंगे, आप खुद बताएं कि अगर घर में 4 भाई हैं और बाहर एक दुश्मन है, आप घर में खुद से लड़ते हैं, तो बाहर के आप किस तरह उससे लड़ेंगे? जो दुश्मन है वो तो मौके का फायदा उठाएगा ना। ये सारे का ये आपके यहाँ बलूचिस्तान में नहीं है, हर जगह। अभी बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान को हक दो तहरीक उठी है, जमात इस्लामी की थी है, जमात इस्लामी की तरफ से कितना वो काम कर रहे हैं, अभी तो बलूचिस्तान के लिए बात कर रहे हैं ना। और पंजाब के अंदर से कितनी आवाजें उठती है बलूचिस्तान के लिए, उठती हैं, बहुत ज्यादा उठती हैं। लेकिन इस
बात को आप इधर लेके जाए, अभी आप खुद मान रहे हैं कि रा सपोर्ट कर रहा है, इंडिया हमारी सपोर्ट कर रहा है, और हम अगर कभी आज़ाद हो जाते हैं तो हम तो भाई उनके लिए अपनी जान का एक अपना खून का आखिरी कतरा तक भी उन पर निछावर कर देंगे, और हम नमक हराम नहीं है। अब आप खुद बताएं कि ये बलूचिस्तान जिसमें आप रह रहे हैं, ये गवर्नमेंट जिसके साथ आप रह रहे हैं, ये वतन जिसके साथ आप रह रहे हैं, तो वो क्या है? आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? आप उसके साथ, आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, आप भाई अपनी आवाज़ रेज़ करें, आप अपनी आवाज़ को उठाएं, आप मामलात पर बात करें। लेकिन ये तो यार कौन सा तुक बनता है कि आप डायरेक्ट तो, और फिर आप कहते हैं कि स्पेशल आर्मी। भाई ये जो पहले भी हुआ था ना बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान कह रहा हूँ, बांग्लादेश, उधर भी यही बात थी, सारे का सारा आर्मी के ऊपर मलबा डाल के सारा गंद कोई और कर जाता था, नाम आर्मी का लग जाता था, और फिर ये आपके सामने हो गया, और बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। पहले से भाई ये काम हो चुका है, ठीक है। और इसमें जितने का जितना कसूर है और इन्वॉल्वमेंट है, वो उसी मेहरबान की है जिसकी अब भी है, ठीक है। तो खुदारा काइंडली अगर आप हम मालक को देखें, उनका तर्ज देखें। और उसके बाद मैं आप इस वक्त है तहरीक तालिबान के, वो तब पाकिस्तानी फौज को मुर्तद करार देते, सही है। वो कहते हैं कि इसके खिलाफ जंग लड़ना जहाद है, ठीक है मेरे भाई। वो इमाम अहमद बिन अम्मार काफी अरसे से, ये जो आज के उलमा है वो कहते हैं 6000 उलमा का फतवा है कि पाकिस्तान की फौज मुर्तद फौज है और इसके खिलाफ जंग लड़ना जहाद है, ठीक है। इसी कुरान पाक से, इसी जात के हदीसों से ये वो तकी उस्मानी का भी क्या फतवा है, वो बताएं। तकी उस्मानी की तनख्वाह कहाँ से जाती है? बस ठीक है। उस्मानी सरकारी मुल्ला है, उस्मानी सरकारी मुल्ला है। अचानक मुझे याद आता है कि जनाब वो, ठीक है, उसने आपकी बात की, पंजाब की बात की, पंजाबी फौज की फेवर में उससे स्टेटमेंट दिलवाया गया, तो ठीक है। लेकिन आज की दुनिया ज़ाहिर बहुत बड़ी है, जिसके साथ भी ताल्लुक रखे। ज़ियाउलक डॉक्टर जे साहब उम्र में उनसे बड़े हैं, उनको पता है कि मैच देखने के लिए ज़ियाउलक साहब 1980s में गए थे हिंदुस्तान, क्योंकि इंडिया ने अपनी फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर के, नवाज शरीफ साहब आपके वहाँ जाते हैं, आपके आपस में मुज़ाकरात होते हैं, बिजनेस होती है, ट्रेड होती है, उस वक्त आपको कोई दुश्मनी याद नहीं आती। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान की आवाम से कोई एक, हुकूमत से नहीं, आवाम से कोई एक आके ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे बैठ के बात करता है, तो उसको आप ये समझते हैं कि भाई ये इंडिया ने सपोर्ट, तो इंडिया अगर वैसे गवर्नमेंट भी हमारी सपोर्ट करे तो करना चाहिए। क्यों एक कौम की नस्ल खुशी हो रही है, आप पंजाब में रह के उस पर बात नहीं कर सकते? तो ये कश्मीर पर खुशी नहीं हो रही, तुम्हारी हो रही। मतलब इतना तो वेट करें, आपको काफी मौका दिया, आप साथ रहिएगा। मैं चाहूंगा थोड़ा बात आगे बढ़े, बाकी अपना आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट सकती रहेगी। जी पीआरएफ आप बात करें, फिर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जे साहब उनको रिस्पॉन्ड भी करेंगे और मैंने भी ऐड करना था। जी पीआरएफ। शुक्रिया तमाम दोस्तों का, मैं मशकूर हूँ। देखें, हमें अगर आप कहते हो ना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वाजे नहीं करे, तो ब्रदर आप लोग पाकिस्तानी हो, आप अपनी मतलब वाजे करें तमाम पॉलिसियाँ।
ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم نہ انڈیا نہ ایران نہ افغانستان کسی کے خلاف نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنی مجھے معلومات ہے، بات یہ ہے کہ آیا آپ صرف اتنا مجھے بتا دیں، میں 2 منٹ بعد دوبارہ رپلائی کروں کہ کلبھوشن یادو انڈین ہے یا پاکستانی ہے؟ میں سب کی دل سے قدر کرتا ہوں، وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ بس اس کا رپلائی کر دیں، میں 2 منٹ میں چلا آپ کو پھر رپلائی کروں. جی ان کے بارے میں جتنا ہم نے پڑھا ہے نیوز میں انفارمیشن ہم ظاہر آس پاس جو بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کو جب اریسٹ کیا گیا تو یہ الزام لگایا گیا کہ کلبھوشن کو بلوچستان سے پکڑا گیا. حالانکہ کلبھوشن کو چابہار سے اغوا کیا گیا، ان کو پکڑا بھی نہیں گیا تھا، وہاں سے ان کو اغوا کر کے پھر پاکستان کو بیچا گیا تھا. اور اس میں جو رینسم لینے والے لوگ تھے، جو جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا، ان کو بعد میں قتل کر دیا گیا، بلوچستان میں ہی قتل کیا گیا. اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایران ہمیشہ کہتا ہے کہ پاکستان میرے اندر جنگ لڑنے کے لیے پراکسیز بھیجتا ہے. تو بالکل ہندوستان تھا. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دشمن تھا، آپ نے صحیح بندے کو پکڑا ہے، تو پھر آج تک وہ مہمان بن کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ انڈیا کے جہاز میں یہ کون تھا، ایک جہاز گرائی گئی، ایک پائلٹ کو واپس آپ نے کیوں بھیج دیا؟ حالانکہ وہ دشمن تھا آپ کا. بلوچ کے بچے کو آپ اٹھایا جاتا ہے تو 20 سال تک اسے غائب رکھا جاتا ہے. تو جو آپ کا اصل دشمن ہے، آپ ہمیں بھائی بھائی کہہ رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہم مانتے ہیں نہیں مانتے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ بھائی کے بچے کو اٹھا کے 20 سال غائب کرتے ہو، اور جس کو آپ ازلی دشمن کہتے ہو اس کے پائلٹ کو آپ 10 گھنٹے کے اندر اندر واپس اس کے بارڈر پہ پہنچا کے چائے پلا کے بھیجتے ہیں. تو آج بھی کلبھوشن یادو آپ کے پاس کیوں مہمان بنا کے آپ نے بتایا ہوا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ پاکستان کا دشمن تھا، ہندوستان سے ہے، تو آپ اس کو پھانسی دے دیں، ہمیں کیا. لیکن وہاں پہ آپ کی پالیسیوں میں ہم کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے، بلکہ جی حضوری دیکھتے ہیں. ان کو آپ رکھتے ہیں اپنے پاس کہ ہمارے ساتھ انڈیا کچھ اچھا کرے. یہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں پیارا؟ جی پیارے، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں شاید بزی ہے آپ کا اسٹیج، ہم آپ جی میں اب فری ہو گیا ہوں. چلیں، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا. دیکھیں ایک چیز ہے، ہمیں ریاست کو بچانا ہے، اور ریاست کے ساتھ ساتھ اپنی قوم، اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اپنی قوم کو مضبوط کرنا ہے، وہ معاشی ہو آئینی ہو. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں سوچ بھی رہے اور سوچنے کی ضرورت بھی ہے. اچھا ایک اور چیز واضح ہے، میں کسی قوم کے یا کسی مذہب کے یا کسی رنگ و نسل کے خلاف ہم نہیں ہیں، نہ پاکستانی کوئی ہے، لیکن یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ ہمیں ضرور ہر طرف سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں کسی کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ مطلب میں بلوچ ہو تو نہیں. میں 2007 میں جناح روڈ پہ تھا. جناح روڈ پہ یہ فلیکس، میں ظاہر امپورٹر ہوں پاکستان کا، تو میں نے وہاں پہ یہ جو نہیں ایڈورٹائزمنٹ ایک کمپنی تھی، مشین کے سلسلے میں گیا تھا، تو اچانک سامنے نائی کی دکان میں خودکش ہوا. وہ جو چھوٹا موٹا بم کیا بولتے ہیں وہ پھینکا. تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے یہ روزمرہ یہاں ہے، یہ پنجاب سے بیچارے اسی لیے اس طرح کی وارداتیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ ہمیں پالیسی واضح کرنی چاہیے. کیوں پنجاب کا بندہ وہاں نہیں، بلوچستان نہیں جا سکتا؟ بھائی ہم پورے پاکستان، میں خود کے پی کے کا ہوں، میں پڑھا کراچی سے ہوں، لیکن میں 16 سال سے پنجاب میں بزنس کر رہا ہوں، مجھے تو آج تک کسی نے نہیں روکا. میں تو تمام اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، پاکستانیوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، اوورسیز بھی جاتا ہوں، بڑا کچھ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ تمام چیزوں پہ ہمیں باقاعدہ دیکھنا چاہیے. دوسرا، اکبر بگٹی صاحب کی آپ لوگوں نے بات کی، تو ان کے پاس جب اقتدار تھا، انہوں نے کیا معاشی پالیسی، صرف گیس کو استعمال کر کے آپ لوگ کتنے کو انہوں نے اپنا معاشی مضبوطی کیا، اپنا صرف قلعہ مضبوط کیا میرے خیال سے جو ان کا قلعہ تھا. اس کے علاوہ کیا بلوچستان کو مضبوط کیا، معاشی پالیسی دی، یا صرف ایک ہی گیس کو لے کر پوری عوام کو بیوقوف بنایا؟ اور سیکنڈ، آج بھی لوکل لوگ وہاں موجود ہیں، بھائی آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کے نمائندے ہیں. آپ کی فوجی آپ کے نمائندے نہیں ہیں. فوجیوں کا کام ہے بارڈر اور اپنے معاملات دیکھنا، لیکن آپ لوگوں کے مسائل کے ہو، وہ صحت کے ہو، وہ تعلیم کے ہو، وہ تحفظ کے ہو، وہ انصاف کے ہو، وہ روزگار کے ہو، وہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، جو بزنجو اور یہ جو ہے، یہ ہیں اصل. بات یہ کہ ان لوگوں کو آپ لوگوں نے اقتدار دیا، وہ اوپر عیاشی کر رہے ہیں.
آپ لوگ نیچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. بات ہے کہ ان کو پکڑو. جس دن آپ لوگوں نے ان کو پکڑا اور ان سے پوچھے کہ جناب اعلیٰ آپ میرے نمائندے ہو یہاں, آپ میرے بلوچستان, تربت, خزدار, ہر جگہ کے ہو, وہاں کے ایم پی ایم این اے موجود ہے, وہ آپ کے ان کے پاس آپ نہیں جاتے ہو, آپ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہو. خدا رہا پہاڑوں پہ نہ چڑھو, آپ کا مسئلہ مسائل آئین اور قانون کے تحت ان کے پاس ہے, آپ کے لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے, وہاں آپ پہنچے. شکریہ. بہت شکریہ پیارے, آپ کا پوائنٹ اچھا تھا. میں اتنا کہوں کہ بلوچ کی نفسیات اتنی الگ ہیں کہ وہ بعض اوقات ہم بلوچ بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے, کیونکہ جب ہمیں کوئی کسی کتے کے گلے میں بندہ پٹا ڈالا ہوا رستے سے گزر رہا ہوتا ہے اور کتا ہمیں کاٹتا ہے, تو ہم کتے کو نہیں مارتے, ہم اس بندے کو جس کے ہاتھ میں اس کا پٹا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہی خیر ہے, اپنے خونی جانور کو روڈ پہ کیوں گھما رہے ہو نا. تو جن کرداروں کے آپ نے نام لیے یہ پپیٹس ہیں, ان کے 500 ووٹ انہوں نے لے کے, یعنی ایک ایسا پولنگ اسٹیشن جہاں پہ ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوا, اس میں اس کو 500 ووٹ ڈال کے وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے. بلوچستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ بریگیڈیئرز کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ فوج کا کام بارڈر پہ ہے, اگر بلوچستان مفتوحہ علاقہ نہیں ہے تو بلوچستان یونیورسٹی میں آصف غفور کا کیا کام, جا کے یونیورسٹی کے انتظامیہ سے میٹنگ کر کہ مچیروں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جانے کے لیے آصف غفور کا کام تھا, یا کوئی ڈی سی اے سی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے. بلوچستان پیارے بھائی, آپ نے شہید اکبر خان بگٹی کی بات کی. پہلے تو آپ جس لیڈر کی گورنر نہیں رہے, وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, حکومت 7 مہینے سے نہیں چلی. یہ بلوچستان کی پولیٹیکل ہسٹری. ہم پارلیمنٹ میں, اور کیا ایک فرد ذمہ دار ہوتا ہے لوگوں کو اسکول دینا. باقی اسکولوں کی بلوچستان میں عادت یہ ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کو باقاعدہ ایک چھاونی بنایا جائے. آپ کا وزٹ ہوتا رہتا ہے تو آپ کبھی بلوچستان یونیورسٹی آئیں اور اس کے اسپورٹس کمپلیکس کو, جن میں اسپورٹ اور کرکٹ ہونی چاہیے تھے, وہاں پہ پوری کیمپ اور ٹارچر سیلز بنائے. یہ صرف کوئٹہ کی بات ہو رہی ہے. کوئٹہ کے باہر کے ہائی اسکول ہوں, پرائمری اسکول ہوں, سب کو ایف سی نے اپنے لیے کیمپ کی طرح یوز کر رہا ہے. اکبر خان بگٹی کے قلعے کی آپ نے بات کی, اس کی دیواریں کچی تھی کہ پاکستان آرمی نے جب 2005 میں وہاں پہ راکٹ باری کی تو وہ دیواریں گر گئی. لیکن جو اسکول ہمارے ہیں آج بھی ان میں ایف سی, آج تو 2006 میں اکبر خان کو شہید کیا گیا, آج 16 سال بعد ڈیر بگٹی کی عوام پانی کے اس سے مرتے ہیں, لکڑیاں جلاتے ہیں آج بھی. تو یہ جو افراد کے اوپر جو تمام کی تمام ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں, یہ ان لوجیکل ایک ڈیبیٹ ہے کہ بھائی آپ ان سے پوچھیں. ان سے پوچھیں کہ ابھی وزیر اعلیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میرے پاس امپلائیز کو سیلری دینے کے پیسے نہیں. 500 پوسٹوں پہ 5 سال پہلے بھرتیاں ہوئی ہے, وہ بندے آج تک ان کے آرڈر ایشو نہیں ہوتے ہیں. ٹیچر جیسے ضروری پوسٹوں کے لیے 8,000 10,000 سے کی ضرورت ہے اس وقت ٹیچرز کی, ان کو اپوائنٹ نہیں کرتے. ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, ڈاکٹر نہیں ہوتا ہاسپٹل میں. میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے, میڈیسن نہیں ہوتا. تو بلوچستان کے لوگ جب بلوچ کی ایشو کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بلوچ کی زبان کو اسی سے سنیں. بائسنس جو میڈیا کا ہے بلوچ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے, اس سے ہٹ کر, میں بلوچ ہوں, میں زیادہ بلوچستان کے مسائل ایکسپلین کر سکتا ہوں یا ڈاکٹر جے صاحب, کیونکہ میں کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو جو سیاسی اس وقت اسٹرکچر چل رہا ہے بلوچستان میں, معاملات چل رہے ہیں, یہ پوری کی پوری اس میں پاکستانی فوج اور ادارے باقاعدہ ملوث ہیں. اس کے آپ ثبوت چاہتے ہیں ڈس اپیرنسز کے حوالے سے عدالتوں کے بیانات ہیں. 8,000 شیرپاؤں نے تو یہ باتیں میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جتنے بھی دوست آئے ہیں ہمارے ساتھ ہم کو سنیں گے. ڈاکٹر جے صاحب پلیز آپ کچھ ایڈ کریں, پھر شاداب آپ کی طرف. جی تھینک یو ویری مچ ناظرین. میں آپ کی جو لاجیکل کافی نالجیبل آدمی ہیں, اسی لیے اسی میں نہ پہ انہوں نے پارٹی شروع کی ہے, لیکن پھر بھی وہ بھی گروئی ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ
he's also learning, but good thing is he tends to learn. उनकी इंटेंशन लर्न करने की है, ये सबसे बड़ी बात है. उसमें न कोई मजहब का रोल है, न कोई किसी कंट्री की बाउंड्रीज का रोल है. उसमें अपनी ही कॉन्शियस का रोल होता है कि आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस तरह से बात करना चाहते हैं, लोगों से किस तरह के लोगों से रेस्पेक्ट चाहते हैं, कितने लोगों से रेस्पेक्ट चाहते हैं, कैसे लोगों से रेस्पेक्ट चाहते हैं. ये सवाल आपके अपने हैं और यही आपको एक लीडर बनाते हैं. मजहब आपको लीडर नहीं बनाता है. मजहब जो आपको मोरल नहीं देता वो मजहब नहीं है. मैं तो ये जानता हूँ. मैं तो जानता हूँ कि जो नेचुरल फोर्सेज हैं उस पर किसी का जोर नहीं है, न किसी अल्लाह का, न किसी भगवान का, न किसी वाहिगुरु का. जब बाढ़ आती है सबसे पहले ये मरते हैं, जब बिजली गिरती है सबसे पहले ये घायल होते हैं, जब जलजले आते हैं या भूचाल आते हैं, इनका भी कोई जोर नहीं चलता. नेचुरल फोर्सेस को मानना चाहिए और ये साइंटिफिकली प्रूवन है. कोई बाढ़ को समझने के लिए जानना पड़ेगा कि पानी कहाँ से कहाँ बहता है, न कि अल्लाह को समझने के लिए या किसी की वर्शिप करने के लिए या किसी के सामने घुटने टेकने के लिए. इस तरह की सोच को आपको पूरे कंट्री में इनकलकेट करना पड़ेगा, मॉडर्न थॉट्स को डेवलप करना पड़ेगा. वरना ऐसे लोग जैसे अभी आप उससे पहले वो आपसे बात करने से पहले पूछ रहा आपका मजहब क्या है बताइए, नहीं तो वो बात नहीं करेगा. उसी कलर में डॉक्टर विजय साहब, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे. डॉक्टर जी की आवाज़ आ रही है? सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, आप मुझे रोकना चाहते हैं? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, प्लीज बात करें. ओके, सॉरी, अब आ रही है ना? जी, अब आपकी आवाज़. अब चूंकि वहाँ की लीडरशिप ने लोगों को मोटिवेट ही नहीं किया कुछ नया करने के लिए. जो भी कुछ नया करने वाला आदमी था उसको आपने ब्रांडिश कर दिया. शिया में, अहमदिया में, उसको क्रिश्चियन में, हिंदू में, उनको ऐसे ब्रांडिश कर दिया. तो जो नेचुरल रिसोर्स है आपका, जो ह्यूमन रिसोर्स है कंट्री का, वो सारा स्प्लिट हो गया. अब इस बात को कौन समझे? लीडरशिप कॉन्शियस से आती है मेरे दोस्त. ध्यान रखना, मजहब से नहीं आती. मजहब में तारिक जमील जैसे लोग तो पैदा हो सकते हैं जो हूरों की रंग और स्किन के बारे में बताएंगे. हूरें कैसे बैठती हैं, कितने उसके लिबास हैं, कितने कपड़े पहनती हैं, वो आपसे कैसे बात करेंगी, आपको उनसे कैसे बात करना है वो बताएगा. वही आदमी प्राइम मिनिस्टर के पास बैठ के अपनी तस्वीर घुमाता है, वही उसको मोटिवेट करता है. अब जब कंट्री ऐसे लोग चलाएंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे? आप कैसे मोटिवेट करेंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स को? अगर आप लीडर हैं तो आपको हर व्यक्ति को, हर इंसान में ये देखना पड़ेगा ये कुछ ना कुछ कर सकता है इस कंट्री के लिए. उसमें उसके कैलिबर को आपको देखना पड़ेगा. उसको फिर मोटिवेट करके उसको कुछ प्रोड्यूस करने के काबिल बनाना पड़ेगा. ये एक थ्योरी है एजुकेशन की. लेकिन उस कंट्री ने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया. मैं बहुत लोगों को पिछले 15 साल से सुन रहा हूँ, चाहे वो डॉक्टर हुड बॉय हों, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, साफ बोलते हैं कि इस कंट्री में कल्चर ही नहीं है साइंस की, टेक्नोलॉजी की. सारे कुछ जो मिलिट्री से बच गया उसको मुल्ला ने पकड़ लिया, और जिसको मुल्ला ने पकड़ लिया वो किसी के काम का नहीं रहा. फिर वो पॉलिटिशियन के काम का भी नहीं रहा, क्योंकि पॉलिटिशियन जान जाता है कि मैं इसका कुछ नहीं, इसको कितनी भी एजुकेशन दे दूं, इसको पीर से पावर नहीं बना सकता. बॉम्ब तो बना सकता है लेकिन न्यूक्लियर से पावर नहीं बना सकता. 24 घंटे अंधेरा रह सकता है, बाहर आके आपको सबको डरा सकता है अंधेरे में बैठ के कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन ये नहीं. इन सवालों को कौन करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके हाथ में पावर है वो आपसे उगाही चंदा लेके, आपसे हफ्ता लेके सीधा कनाडा पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज में जाके वहां जो रियल यूरे है ना, वहां उसमें ऐश करते हैं. कोई ऑस्ट्रेलिया आके आइलैंड लेता है, कोई आपको खुद में मेडिटेट करना पड़ेगा बैठ के कि इस कंट्री को लेके कहाँ जाना है. मजहब कहीं नहीं ले जा सकता आपको. 75 साल में देख लिया आपने, जिस शख्स ने सारी जिंदगी
मजहब नहीं किया, वो कभी उसको बैठना भी, उसको अजान आती है, नमाज पढ़ना आता था, वो उस आदमी ने कंट्री बना दिया। सब सारी दुनिया को पता है कि वो आदमी जिसने कंट्री बनाया है इस बिना पे कि हम दो कौमें हैं, आई डोंट वांट टू एम्बैरस यू, लेकिन जो कंटेमिनेशन तो है वो वहीं से हो गया। ह्यूमन कॉन्शियंस का जो कंटेमिनेशन है वो तो वहीं से हो गया। इसीलिए अच्छे लीडर्स आ नहीं पाए। जो टॉप पे लीडर्स हैं वो सारे हो गई। जो जरदारी ने जो करना था वो उसको भी 10% कहा गया। आपस में लीडर्स एक उसे वो गाली इस तरह से देते हैं कि मैं तेरी गर्दन उठा के मैं सड़कों में घुमाऊं। किया जो भी किया वो मार्शल लॉ किए, वो डिक्टेटर्स किए जिन्होंने जो अपॉर्चुनिस्ट थे कि इनसे बेटर तो हम ही खा लेंगे। उन्होंने कहाँ जाके बैठ गए, कोई दुबई जाके बैठ गया, कोई इंग्लैंड जाके बैठ गया, कोई कनाडा जाके बैठ गया। आपको सवाल छोड़ के चले गए। हम इसलिए इन पे अटैक करेंगे। एक मिनट जरा, एक मिनट प्लीज, इस थॉट को कंप्लीट हो जाना है, फिर उसके चले गए, हमारा फिर साथ नहीं दिया। इसलिए हमने कहा कि ये लोग इनके ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए उन्होंने टेररिस्ट अटैक करवाया। अब ये थ्योरी अपने जर्नल्स के ऊपर थ्योरी लगाते हैं। ये जब आपसे सारा पैसा लेके, टैक्स लेके, और ये सब आपको छोड़ के आखिर में भाग जाते हैं, इस लैंड को छोड़ के, जिसकी कसम खाते हैं, जिससे जहां वो ओथ लेते हैं, जिस सारी जिंदगी वर्दी पहन के आपके ऊपर डंडा घुमाते हैं, उसी को सबसे पहले छोड़ के भाग जाते हैं। ये आपको सवाल करने चाहिए। वही लॉजिक लगाइए अब जो ओसामा बिन लादेन ने लगाया था अमेरिका पे। जाते हैं खा पी के, वहां पे कोई पापा जॉन की चेन ले रहा है, कोई या फिर डायपर बना रहा है, कोई सीमेंट बना रहा है, कोई जो काम लोगों को, सिविलियन लोगों को करने चाहिए, जो ऐसे बनता है, आप ऐसे बनाइए, हम आपको लोन देंगे, 50 सीमेंट की फैक्ट्री लगनी चाहिए, उससे नई बिल्डिंग बनेगी। ऐसे ही सब जगह उनको स्किल्स के कैंप लगाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऑन द कंट्री उन्होंने क्या किया, यार इनको जाहिल रखो। एजुकेशन में उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसीलिए आज ऐसे लोग पैदा होते हैं कि पहले आप अपना ये बताओ कि आपका मजहब क्या है, बताइए। जैसे कि बिना मजहब के कोई बात ही नहीं हो सकती। ये बातें सोचने की है मेरे दोस्त। मुझे फिर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ बहुत देर से, लेकिन अगर आप नई लीडरशिप के लिए तैयार हैं तो नई सोच के लिए भी आप तैयार होंगे। फिर ये नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स में करना पड़ेगा, जिसको आप बाद में रीप कर सकें। बिल्कुल वो फसल जो आप लगा रहे हैं उसको बाद में आप कैसे काटेंगे, वो फिर इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप फसल क्या लगा रहे हैं। तो आपने ये बात मैं बहुत दिन से हसन निसार से सुन रहा हूँ। एक हसन निसार नहीं है, बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे, अच्छे काबिल लोग हैं वहाँ पे। इवन वहाँ पे एयर मार्शल भी है जिन्होंने साफ साफ बोला कि सारी वॉर हमने क्रिएट की, हमने जिन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि मुंबई का अटैक हमने करवाया, साफ साफ बोला, एविडेंस के साथ बोला हुआ है। तो पॉइंट ये है कि रही बात आपका जो पॉइंट है कि ये कुलभूषण यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, वो नादिर साहब ने उसका आपको बता दिया कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। लेकिन उसका लॉजिक सीधा यही बनता है कि जैसे इंडिया ने कसाब को फाइनली सूली पे चढ़ा दिया, सारा एविडेंस प्रोड्यूस करके कि उसने टेररिस्ट अटैक किया, सबकी आंखों के सामने सूली पे चढ़ा दिया। अब इस बात का आपने तो मार्शल कर दिया उसका, जो मिलिट्री की कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी थी, तो लटका देते आप, नहीं लटका सके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा तो वहां आप उसको आपके पास एडमिसिबल एविडेंस है ही नहीं, क्योंकि उसके पास काउंटर एविडेंस ऐसा है कि उसको
पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बचाना है। अगर हजार बलोच ताकि बात थोड़ी सी आगे बढ़े, उसका नेट इशू रह रहा है। जिस खान आप बात करें फिर साइलेंट आपकी तरफ प्लीज़ अगर प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे आप टाइम दे दें, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2-4 बातें करूँगा। पंजाबी भाई है, मैं खुद भी पंजाबी हूँ और हमें प्राउड होना चाहिए अल्लाह ताला ने अगर मैं पंजाबी या बलोची या सिंधी बनाया तो, और ये हमारी आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा, चाहे वो मैं किसी भी कम्युनिटी में हूँ, सबसे पहले तो हम इंसान हैं, हमें एज ए ह्यूमन बींग सोचना चाहिए। उसके बाद हमारी आइडेंटिटी जो भी है वो उस पर हमें ये हमारा प्राइड है कि हमें अल्लाह ताला ने दी है, इस पर हमें खुश होना चाहिए। फिर ये कि बाइस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे आज़ादी मांगता है तो हमने भी मांगी है, वरना हम सारे एक ही पूरा कंट्री होता, पूरा वर्ल्ड एक ही कंट्री होता, हम सब ने आज़ादियाँ ही ली हुई हैं। और हत्ता कि हम बहन भाई भी इकट्ठे नहीं रहते हमेशा, हम लोग एक वक्त पे आके अपने अपने घरों में दीवारें खड़ी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग झगड़ा नहीं करते। इसी में जब आपको लगे कि यहाँ पे आपको आपके राइट्स सिक्योर हो जाएंगे, आप ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, तो कोई इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें अगर आपको आपके राइट्स मिल जाएं तो इकट्ठे रह लें, अगर आपको आपके राइट्स ना मिल रहे हो तो आप अलग रह लें। मेरा पॉइंट ये है कि जिस चीज़ में आपके राइट सिक्योर हों वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हमें माफियाज रूल करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं या अफ़गानिस्तान में नहीं, तकरीबन पूरी दुनिया में ही हमें माफियाज ही रूल कर रहे होते हैं। वो अपने चंद एक गिराने होते हैं, वो अपने मफादात के लिए बाकी सबको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। बलूचिस्तान में इसमें एक्सेप्शन नहीं है, आपके बड़े आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, पंजाबियों के बड़े उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो असल में वही आगे निकल रहे हैं, वही मजबूत हो रहे हैं। हम बाकी जो आम लोग हैं, हम लोग तो या तो जान बचाते फिर रहे हैं या अपना पेट पालने के लिए इधर उधर जलील हो रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग इंटेलेक्चुअली भी और वैसे भी वर्स देन एनी अदर एनिमल लाइफ गुजार रहे हैं। मेरा यही पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले हमें ये करना है कि हम हमारे राइट्स क्या है, उसके बाद हमने उसके लिए स्ट्रगल करनी है। अगर अपने राइट्स के लिए आपको माइग्रेट भी करना पड़े तो हम लोग करते हैं, और अपने राइट्स के लिए अगर जितनी आपको, मेरा एक पॉइंट है कि आर्म स्ट्रगल सिर्फ उस वक्त करें जिस वक्त आपको यकीन हो कि आप आर्म स्ट्रगल से आपको कुछ मिलेगा। फिर आपको लगे कि ये बैटल लूज़ करनी है तो फिर बेहतर है माइग्रेट करें। ये मेरा पॉइंट, ताकि हम लोग कम से कम लॉसेस लें। तो दूसरा ये कि अपने जो लीडर्स हैं इनको, जो आपको बगैर इलेक्शन के छोटा मोटा एक इलेक्शन होता है बलूचिस्तान में, इन लोगों से बाइकआउट करें। ये लोग आपको बेचते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए बेचते हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इस तरफ भी सोचें। बस मैंने यही कहना। थैंक यू इफ्तिखार भाई, बहुत बेहतर स्टेटमेंट है आपका। और हम बिल्कुल अपने आइडेंटिटीज हमारे तो किसी को मुख्य आइडेंटिटी जो ना खाते तो अच्छा नहीं होना चाहिए। और थैंक यू, आप आज़ादी के मतलब को समझते हैं और जिस तरह आप अपने लिए आज़ादी चाहते हैं, इस तरह मैं दूसरों के लिए भी, अगर कोई कौम हो कि अपने वतन की बात करता है आज़ादी, इसमें मेरे ख्याल में इंसानियत पसंद लोग हैं, उनको साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, आप साथ रहेंगे और करेंगे। इससे जी से एग्री करूँगा इस बात पर कि मज़हब की बात आप नहीं समझे मैं किस तनाजुर में कह रहा हूँ। आपको पता है आप डेमोक्रेसी पर बिलीव रखते हैं ना, ये डॉक्टर जे साहब भी रखते हैं और सभी रखते हैं। तो जब आप डेमोक्रेसी पर बिलीव रखते हैं तो इस लिहाज से पाकिस्तान में अक्सरियत कौन है
डेमोक्रेसी किनकी बनेगी? मुसलमानों की बनेगी। और इस तनाज़ुर में मैंने बात कही है भाई, उसका ये नहीं मतलब कि हम जितनी भी दूसरी अक़लीतें हैं या माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट नहीं दे रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें जाकर ये उन्होंने बड़ी लंबी बात कर दी जी, मौलाना पैदा होते हैं, ये होते हैं, इनको मेरे ख्याल में इतना नॉलेज है या छुपा रहे हैं कि इतने भी पाकिस्तान नहीं गए गुजरे कि इन्होंने कुछ नहीं बनाया। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कुछ बनाया, और अरफा करीम जैसे यहाँ से साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी हकीकत है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि मज़हब को आप छोड़ के कैसे आप यकजा कर सकेंगे पूरे उनके पूरे जो मुल्क को। और अगर ये सारे इकट्ठे हुए तो सिर्फ कलमे की बुनियाद पर इकट्ठे हुए थे, ठीक है। और दूसरी बात, आप ये अभी ये बात भाई ने बात कही है, इस बात के मैं तनाज़ुर में बड़ी अच्छी बात कही भाई, आज़ादी मिलनी चाहिए, हर एक को मिलने चाहिए। अच्छा, अब आप ये बात देखें कि जिस तरह इन्होंने बात की है कि आप अपना राइट ले सकते हैं, क्या आप ये बात कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर जितनी भी फ्रीडम फाइटर हैं और ख़ास तौर पर कश्मीर, क्या जो आपको आज़ादी दिलवा रहे हैं, आपने खुद माना बकौल आपके, जो आपको आज़ादी दिलवा रहे हैं, क्या उनमें इतना दमखम है या उनमें ये सोच है या उनमें वो फ़िक्र है या उनमें इंसानियत है वो उनको आज़ादी दें? अगर तो वो इतने मुखलिस है ना, यानी आप समझ रहे हैं वो मुखलिस है, आपका साथ देते हैं, तो इतने मुखलिस है, इतने इंसानियत पसंद है, इतनी ह्यूमैनिटी है उनमें, तो क्यों नहीं भैया आज़ादी देते? खालिस्तान क्यों नहीं बनता? कश्मीर को क्यों नहीं आज़ाद करते? तमिलनाडु दूसरे तीसरे जितने स्टेट है क्यों नहीं उनको आज़ाद करते? मेरे भाई ये सारी गेम है, और गेम हमारे इसी तरह चलती है, तो ज़रा इस पर गौर करें। अगर आप ओरिजिनल बलोच है, और मैं कसम से आपको एक बात बताऊँ ना, आप भी हमारे दिलों में अपने बलोच भाइयों के साथ वैसी मोहब्बत हो, जो ऐसी बातें करता है ना उसको तो हम वैसे ही इंसान ही नहीं समझते। मेरे अपने गाँव के 21 बंदे बलूचिस्तान को आगे जाते हैं ना टैंकी लगाने के लिए, वो गए थे, और इसी बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ एक लड़का जो आज भी जिंदा है वो बचा था, 20 के 20 उधर से गोलियों से ना मार दिया गया था। और किन्होंने मारा यार? और अगर हम आज भी कहते हैं ये बलूचों ने नहीं मारा, ये कुछ पठान हो, जित ये डॉक्टर जे फिर बात करेंगे। और जिस वक्त तक मजहब कायम रहे, ये डेमोक्रेसी है भाई, मुसलमान मुल्क है और इसमें मजहब है, इस्लाम है, तो इसलिए इस पर बात करके हम इकट्ठे रह सके। बाकी सब जी मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों? जी जी आ रही Yes. है। आई एम सॉरी, आप सब से इजाज़त चाहूँगा। साइलेंट ने थोड़ी इस्लामी टच दी है बातों में। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इनसे नहीं आ रही आवाज़। मेरी आवाज आ रही है कोमल? जी जी आ रही है। जी। फिर मैं खानी जी, आपकी आवाज आ रही है? मुबाश आप बात करें, क्या कहना चाहते हैं? यार मैं साइलेंट आवाज़ आ रही है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा। इन्होंने इस्लामी टच दिया है, आई एम सॉरी टू से। करें आई वांट अली और मुआविया की लड़ाई हुई है, आपको पता है? बिल्कुल भैया पता। और यजीद कौन थे? मुआविया के बेटे थे। उनकी और हुसैन की लड़ाई किस हुई? जी बताइए आप। हाँ तो पर्सनल ये और सियासी हुसैन ने क्यों? नहीं सियासी बात नहीं है, आपने इस्लामी टच दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी लड़ाई ये थी, जुल्म यजीद था, वो जालिम था, उसने जबरदस्ती जो है हुकूमत अपना ली और उसके ऊपर हुसैन उठे। और जब वहाँ पे हुसैन अकेले थे तो उन्होंने देखा मेरे साथ कोई नहीं है, मैं यहाँ पे
मतलब कत्ल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी वो वहीं पे डटे रहे और उन्होंने लड़ाई की और वो वहाँ पे शहीद हो गए, वो पीछे नहीं हटे। तो इस्लामी टच में उसी टाइम से जो जालिम था उसके खिलाफ उठना लाजमी था, जैसे अली उठे मुआविया के खिलाफ और अली का बेटा हुसैन उठा यजीद के खिलाफ। और ये आपका इस्लाम जो मतलब जिस इस्लाम को आप मुसलमान हम भी है, बट हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को चुप रहना ये भी जालिम की हिमायत होती है। अभी आपने लाशें उठाई है, आप अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे, वो आपका मसला है। मैं क्यों लाशें उठा, कभी आप कहते हैं वो बादशाह के इमाम अंबल के दौर में काम, तो यार ऐसे मेरी बात सुने, ऐसे फिर मूसा क्यों फिरौन से लड़े? वो भी तो कहते हैं यार फिरौन तो रियासत है, वो तो फिर रोमन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर, ईरान को क्यों, हमारा जो मैन होता है वो नेशनलिज्म है। सही से पता इस पे काफी मैं आपसे बहस करूंगा, अभी काफी लोग हैं, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नेशनलिज्म बातों को आप कभी भी इस्लाम का टच न दे, आप पाकिस्तानी न बने, बी ए ह्यूमन, आप इंसान बने, आप ह्यूमन राइट्स की बात करें, आप देखें जुल्म हो रहा है तो जुल्म को जुल्म कहे, ये नहीं कहे कि ये हो रहा है बस मुसलमान है। भाई ऐसे मुसलमानी आपको मुबारक हो। शुक्रिया। हम नहीं कहते जुल्म हो रहा है, उसको रोके, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। वो आपका घर किसी रोड पे बनेगा तो वो आपका घर भी गिरा दिया जाएगा, मस्जिद भी बनती है उसको भी रास्ते से हटा के रास्ता चौड़ा किया जाता है। मुल्क भी वही होता है कि जिसकी कोई हिस्ट्री हो। 1947 से पहले पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था, तारीख ही नहीं थी। फिर इसको जब बनाया गया, इसकी मुस्लिम लीग बनती है बांग्लादेश में, क्या मतलब आप लोगों को तहजीब में थोड़ा बहुत ये तो बताया जाता होगा कि कोई बड़ा बात करे या कोई और बात करे, पहले उसको सुन लो। जी पीआर पे आप बात करें। देखिए मुश्किलात यानी दिल दुखाने वाली बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखें हमें हर तरफ देखना होगा। आप लोग अगर हमारी जो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ज़्यादा इख्तियार आ गया, अगर आप लोग पहाड़ी से चढ़ने से बेहतर इस तरमीम पे अपना मजबूती के साथ काम करते तो आज आप लोग और परेशान नहीं होते, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों में बहुत ज़्यादा आप अपने सारी चीज़ों को कर सकते हो। हम आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको छेड़ नहीं सकता वफाक, वरना आया इमरान खान अपने दौर में जजीरे पे काम शुरू नहीं कर सकता। देखो आइन और कानून है पाकिस्तान में। और सेकंड भाई आप लोगों को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप हम सब एक हैं, बलोचिस्तान हो, पख्तून हो, केपी हो, पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर तक। लेकिन इसके साथ साथ मैं वाजे कर दूँ, आया मेरे भाई शायद फ्रॉम इंडिया, लेकिन देखें आया आप लोग खालिस्तान बनने दे रहे हो? छोड़ दे, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान है मेरे सिख भाइयों को आप लोगों ने तो 30-35 हजार सिखों को सिर्फ इसलिए मारा कि वो अपने लिए खालिस्तान, उनके जो इबादत गाहों को आप लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया, वहाँ बम ब्लास्ट करवाए सिर्फ इसलिए कि वो आज़ादी मांग रहे थे। आप लोग आके मेरे मुल्क में आज़ादी की बात कर रहे हैं, खुदारा आप अपने मुल्क में आज़ादी दें, हम अपने मुल्क में आज़ादी के लिए इनके साथ तहरीक शुरू करते हैं। आप एक जगह तो रुके। दूसरी बात ये कि हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी की मुल्क में जाके वहाँ पे इंतशार फैलाएं या
کوئی ایسی حرکات کر رہے ہیں جس سے ہم امن و امان میں خرابی ہے. کوئی شوق نہیں ہے. کون سے تک کوئی اس کا لنک نہیں ہے پنجاب سے یا پاکستان سے واضح طور پر. الگ بات ہے کہ کچھ تو ہم نے اگر کلبھوشن کو رکھا ہے تو کلبھوشن کو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پھانسی کیوں دے. کلبھوشن کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے اتنی بڑی چین، اگر ہم نے آپ کے ایک یا دو طیارے گرائے ہیں، ایک دو ہیں لیکن چلو آپ ایک کہتے ہو، تو وہ ایک طیارہ آیا اور دوسرے طیارے میں کون تھا؟ آپ لوگوں کے پاس تو دو لوگ تھے جو سننے میں آ رہا تھا. لیکن اینی وے شاید وہ آپ لوگوں کی سائڈ پہ جا کے گرا ہوگا یا جو بھی تھا. لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم نفرت پھیلانے نہیں آئے. اگر ہم نفرتوں کی باتیں یہاں کریں گے آئین اور کا کسی فرقے کسی نسل کے ساتھ نہیں، ہماری جنگ غربت کے ساتھ ہے. اور بات رہی 18ویں، جتنا کے پی کو مل رہا ہے، جتنا سندھ کو مل رہا ہے، اتنا ہی فنڈ بلوچستان کو مل رہا ہے. تو بلوچستان کی تو آبادی کم ہے اور رقبہ زیادہ ہے، وہاں تو زیادہ آزادی لے رہے ہو. آپ پیچھے سے فائنینشلی فیڈ ہو کے آزادی لے رہے ہو. نہیں بھائی، آپ خود میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، سارے پشتون ہیں، وہ کیوں آپ پہ ظلم کریں گے؟ وہ پاگل ہے کیا؟ بھائی ہم سب ایک، ہمارا ایک ہی ملک ہے. ہم نے ادارہ ہے، اس کا بلوچستان میں کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے یہ جو 18ویں ترمیم ہے پاکستان کے آئین کا خدا قسم میں سنتا ہوں، آئین کو انہوں نے کوٹے پہ بیٹھے ہوئے کسی دوا سمجھ کے جب بھی ان کا دل کرتا ہے اس میں نیا میک اپ کرتے ہیں. ابھی ریکارڈنگ کے مسئلے پہ نقیب اللہ محسود کے کیس میں اس کو کل بری کر دیا جاتا ہے. آپ کس انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ یہ پہاڑوں پہ 10 سالوں کی جدوجہد کو پھر جا کے انہوں نے وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں. یہاں پہ انصاف کی مسنگ پرسنز کے کمیشن کے PRP کیسز آپ پڑھیں کہ اس خود رات کو اپنے انصاف کے لیے آپ کے جاتا ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، بلوچ کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے فیملی جاتا ہے، اس کے فیملی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں کے. تو آپ کریں، کوشش کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بزنسز آپ کو ہم پاکستان کرتے رہے. پاکستان میں پشتون KP میں جا کے رہے، پشتون اسلام آباد میں جا کے رہے. ہمیں کے اوپر جو 1948 میں قبضہ ہوا ہے بلوچ کو، اس کے خلاف لڑنا، اس کے خلاف بولنا
वार अगेंस्ट टेरर में, इन सबको ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज नहीं दे रही। ये जो अभी भी सैकड़ों कैंप वहां पे बना के केपी के अंदर अफवानों को रेफ्यूजी बनाया गया है, आप उसको फील नहीं करते, नहीं देखते, मैं आपके कॉन्शियस का जिम्मेदार नहीं। ये दुनिया की वो पहली फौज है कि जो अपने अवाम को ये आर्मी पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को इन्होंने खुद अपने आर्मी वालों के अपने लोगों के बच्चों को मारा और फिर आके कहा कि जनाब ये तो कोलेक्शनल डैमेज हो गया हमसे। आप कहते हैं कि जनाब हम दूसरे मुल्कों में प्रॉक्सीज नहीं लड़ते, इंटरफेयर नहीं करते। काबुल में जब तालिबान की हुकूमत आई अगले दिन फैज हमीद किस लिए वहां पे पहुंचे? चाय पीने के लिए। आपका ये तालिबान कहाँ से जा रहे थे? यूएस के सेक्रेटरी अभी निकी हेले का एक स्टेटमेंट है, वो वीडियो उसकी आई है, उसमें कहता है कि हम डॉलर भी इनको देते थे और ये मरवाते भी हमारे लोगों को। अभी आपको ट्रेड की, अगर आप इस तरह ट्रेड कैसे करेंगे कि लोगों के बच्चों को उठाते रहे, मारे जाते, और आप कहेंगे कि बलूचिस्तान पीसफुल बैठेगा, लोग पहाड़ों में नहीं जाए हमारे ये खोखले अदालती निज़ाम पे या इस डेमोक्रेसी पे जिसमें बलूचिस्तान को अपनी 70 सीटें दी है, उनको भी बर्दाश्त नहीं करते, अपने ब्रिगेडियरों के जरिए नाम नॉमिनेट करवाते हैं। तो पीआरपी ये हकायक है, इन हकायक से आप चश्म पोशी कर सकते हैं, वो आपका ऑप्शन है, लेकिन कितने दिन कर सकते हैं? कितने दिन इस रियलिटी को आप दुनिया से, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कैसे अपने वतन में क्या करते हैं, मुझे उससे रस नहीं। मुझे ये चाहिए कि भाई ये कम से कम इंसान होने की हैसियत से बलोचों के दर्द को समझते तो है और कुछ नहीं कर रहे, कम से कम इतना तो बोलते हैं कि गलत हो रहा है। इससे ज्यादा वो कर भी नहीं सकते। तो आप भी कम से कम वो किरदार तो बने कि सच्चाई को तो बोले कि जनाब आपको उठाया जा रहा है तो कोई वजह होने की बजाय, अगर उसको कोई वजह है, क्यों अदालतों में पेश नहीं की जा रही? वजह है, जुर्म है, आप समझते हैं कि ये रियासत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो इसको प्रिजनर ऑफ वॉर डिक्लेयर कर, जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक ह्यूमन राइट्स है, उनको उस तरह ट्रायल करें, उस तरह रखें जेलों में, उनकी फैमिली उनको मिल तो सके। कुलभूषण की वालिदा लेकिन एक बलोच की माँ अपने बच्चे से किसी कुली कैंप में मुलाकात भी नहीं कर सकती। तो ये जो ड्यूल आपका पॉलिसी है कि जनाब आप बलोच को मारेंगे, पश्तून को मारेंगे और आप बिजनेस की सोचेंगे, फिर इसी तरह जिस तरह आप डेब्ट में धंसते चले जा रहे हैं, और ये मतलब वो मरल आएगा कि आपका कोई भी बिजनेस काम नहीं कर, कोई भी दुनिया में जब आप इतने बड़े पैमाने के जुल्म लोगों के साथ कर रहे हैं, वो आपको फिर आराम से बैठने भी नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि राहुल बजाज बात करें, फिर मुस्तफा भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर राहुल मैं आपकी तरफ जी। सबसे पहले तो ये मैं हमें जो चूरन बेचा जाता है दो कौमी नज़रिए का और इस्लाम के नाम पे ब्लैकमेलिंग चल रही है 75 साल से हमारे साथ, तो 99% तो तकरीबन हमारे मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एक ही चीज़ फॉलो करते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, और शिया सुन्नी फसाद अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ही चल रहा है किसी न किसी सूरत में। तो यही हमारा इस्लाम हमें जो पिछला से ट्रांसफ़र हुआ है वही हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी वो नहीं है कि कोई अलग से हमने दीवार खड़ी करके तो कोई ज़्यादा अचीव कर लिया। और अगर इतना ही हमें अजीज़ है हमारा कौमी नज़रिया, तो झंडा फिर वो सफ़ेद रंग का झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लगाते हैं, रियाल करेंसी बनाते हैं, वैसे भी उनसे ही मांग के खाते हैं। तो उनसे कहते हैं एक शहज़ादा भेज दें हमें, डायरेक्ट गवर्न करें, हम एक नेशन है, तो इतना अगर नेशनलिज्म की हमें करना है तो अपना भाई सोचो, अपने राइट्स देखो, अपने आप को देखो। बाकी हम इंडिया पाकिस्तान हमेशा से कुत्तों की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं पागलों की तरह किसी और के मफादात के लिए। कभी ये कुलभूषण भेज देते हैं तो कभी वो कोई और भेज देते हैं, तो ये इनका इस तरह ही चलता रहेगा। नॉनसेंस टॉक है और एक दूसरे को नॉनसेंस टॉक है और एक दूसरे को मार रहे हैं। हो रहा है ये
पाकिस्तान के पास इतनी ज़्यादा माइंड सेट है कि ये सारा आज़ादी के लिए रिच है ये इसको इम्पोर्टेंट है ये इसको डिस्टेबलाइज भी रखना है और इसको हाथ से भी नहीं जाने देना। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की भी यही मर्जी है और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की भी यही मर्जी है। मेरे ख्याल में इनके लिए बेस्ट ये है कि ये लोग एटलीस्ट अपने राइट्स को सिक्योर करें, अपनी एजुकेशन, हेल्थ और चीज़ों को करें और अपनी बड़ों में जाके पकड़ें कि हमें ये दो वरना ये हम नहीं रन करने देंगे। इनकी मर्जी के बगैर ना तो यहाँ से गैस पाइपलाइन निकल सकती है, ना ग्वादर चल सकता है, ना रेकोडेक चल सकता है, कुछ नहीं चल सकता। और ये रेकोडेक पे भी इनके साथ हाथ ही हुआ है, मैनेजमेंट इनकी होनी चाहिए थी, वो इनको इनकी मैनेजमेंट नहीं दी जा रही। कागज़ पे कुछ और होता है, इम्प्लीमेंट कुछ और होता है। तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने आगे बढ़ना है तो इनको तो अपने राइट्स पे काम करना ही है। इनको कहें कि हमें फैसिलिटीज़ दें, आज़ादी को बाद में हम देख लेंगे। ये वरना इनकी इसी तरह इनके बच्चे गायब होते रहेंगे, इसी तरह ये मरते रहेंगे, कभी भी इनको सुकून की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। 50-50 साल इन लोगों के बेचारों के पहाड़ों पे गुजर जाएगी। तो पिछली भी इस तरह गुजरी है, अगले भी इस तरह गुजर जाएंगे। तो ये मैं ऐड करना था। थैंक यू। जी सेंट्रल हमारे साथ है, सेंट्रल एजुकेशन पैकेज का या Shall I continue? yes please. Before starting the script, I have to congratulate those people whoever battled for a separate Balochistan. We are going to get soon or sooner or soon enough. Happy Independence Day to the Balochistan country. That's the first thing. The next thing is, you have done a marvelous job. I am attributing to the person whoever martyred for to get a separate Balochistan. The martyrs should be honored. They are played very well and they have sacrificed everything to get a Balochistan. Soon, I assure that soon Balochistan is going to be a separate country like Bangladesh. And another thing, I came to know that Sindhu also raised their battle to get them separated from Pakistan. Whenever there is a crime appear, the suffocated people will be separated from the crime. That should be happen. That what going in Balochistan. Balochistan is a national richest country, but the Pakistan is refused to recognize Balochistan as a separate country, but they are always willing to get the resources from Balochistan. They are killing people, they are killing children, they are killing women, they are demolishing the mosques, they are demolishing everything. That what happened there, I have spreaded several videos about Balochistan, but Balochistan should be standard alone. There should be a republic country. If Balochistan separated from Pakistan, definitely I will visit Balochistan at any cost. I will be there, and Balochistan should be as identity, own flag, and own culture. The Balochistan may be honored by our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, will be recognized Balochistan as a separate country. That will be accrued in UN United Nations also. I know Balochistan as if I have told several things, but I know Baloch peoples how they are suffered day by day. Without Balochistan,
Pakistan is nothing. But they have to realize that they have to give the proper respect to Balochistan. They have failed to give the recognition to Balochistan. Then Balochistan should have their own country. Balochistan should be separated. Yes. Thank you, sir. We will ask Yes, of course. Balochistan should be respected. Their culture must be respected. Their day of life should be safeguarded. And another thing, Pakistan failed to save the Balochis. Now the Balochis realized that we have to be separated, and our friendship hand will be with you. Like Afghanistan, Balochistan could be our neighbor country. As soon as Sindhu Rashtra also it may be a Copenhagen country with us. I believe that happy Independence Day to Balochistan, happy Republic Day to Balochistan. Thank you. Soon, very soon. Thank you very much, Central. We want to go to our next speaker. Waja Asif Baloch हमारे साथ है. मैं चाहूँगा दो बात करें. जी वाजा. Someone can please elaborate the same thing to Yeah, they no. Okay, जी वाजा Asif Baloch प्लीज आप बात. Ansa mace binta vesutanna iftikhar janna gappate ipa wanna adi respond kyo niyant pas जी बिल्कुल जरूर. बिल्कुल मैं उर्दू में बोलूँगा. मेरे दोस्त इफ्तिखार साहब ने जो फरमाया उसी के लिए मैं अभी ज्वाइन किया. मेरे लिए ये इंटरनेट का मसला भी होता है, कभी कभी ये बिजली के मसले होते हैं, चार्ज के मसले. दोस्त आप फरमा रहे थे बलूचिस्तान के बारे में, बलूच कौम को कि पाकिस्तान उसको नहीं छोड़ेंगे. आपके लिए अर्ज है, पाकिस्तान का था ही नहीं ये हिस्सा. पाकिस्तान को मदद किए थे और जब से कब्जा जमाने की कोशिश की उसी दिन से लेकर आज तक ये जो जुहद हो रहे इससे बलूच कौम ख़त्म नहीं हुए, उनके अफसर पस्त नहीं हुए. अभी पाकिस्तान तमाम मुल्कों से भीख मांग कर उनके मदद के साथ साथ बलूच महते बलूच कौम के खाली हाथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं. ये बलूच अपनी सरजमीन नहीं देंगे. इसी के साथ साथ अपने हमसायों को भी यही उनको फरमा रहे हैं बलूच कौम के हम आज़ादी लेके रहेंगे, हम इसके कब्ज़े को ख़त्म करेंगे. आप लोग भी अपने तैयारियां करें. जो पश्तून कौम है और सिंधु देश, आप अपने ताकत का जितना भी इस्तेमाल कर सकते हो करो. आपको भी एक दिन ये हिसाब देना पड़ेगा. जितना भी अपना वो ताकत इस्तेमाल करोगे इतना ही आप एहतिसाब के जद में आएंगे. जिस तरह बंगालियों के साथ किया है, पता नहीं बलूच कौम आपके साथ किस तरह पेश आएंगे, वो किस तरह अपना हिसाब लेंगे. ये हमारी माँ धरती है, इसके लिए आप तसल्ली के साथ अपना वो बोरिया बिस्तर उठा के ले जाएं, यही सही होगा और आपको ज़रूर एहतिसाब में आएंगे. ये ना कहें कि आपको बलूचिस्तान में ऐसे आज़ाद पहले की तरह घूमने फिरने छोड़ेंगे कि आप आके हमें यही धमकियां दे रहे हैं कि आपके बच्चे उठाएंगे. हमारे बच्चे उठा के आपने क्या पाया, हमारे बुजुर्गों को मार के आपने क्या पाया, हमें
कुरान के नाम पे कसम खा के आपने वादा खिलाफी की, क्या पाया? आज आपको आटे के पड़े हैं, आपको आज गैस के पड़े हैं, आज आपको पानी के पड़े हैं। 5 दरियाओं के पानी भी आपकी प्यास नहीं बुझाएंगे। अपने कद के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक स्पेस में प्रोपेगेंडा करे। बलूच डरने वाले नहीं है। बड़ी मेहरबानी। जी, बहुत शुक्रिया आवाज़ आसिफ बलूच। असल में ये है कि किसी कौम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन में अपनी आज़ादी ले ले। कौमें लड़ती हैं 500 साल, 1000 साल, 200 साल, 10 साल, लेकिन ये है कि वो इनकार करती रहती हैं और इसमें मुख्तलिफ मराइल आते हैं। जिस तरह पंजाब के मुँह से 18वीं तरमीम प्रेशर में निकली, यकूब आगाज़ बलूचिस्तान के नाम पे उन्होंने तमाशे लगाए, तो वो बलूच को तो लालच और उसमें रखना चाहते हैं, जुल्म जब्र कर रहे हैं, तशद्दुद की आखिरी इंतहा हो चुकी है, लेकिन बलूच कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। और इफ्तिखार भाई, सिर्फ दुनिया की जो सियासत है वो पाकिस्तान के हाथों में नहीं है। दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिन पर पाकिस्तान खुद जाके उनसे फंडिंग लेती है, कर्जे लेती है, इमदाद लेती है, किसी मुल्क से चावल लेती है, किसी से आटा लेता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि दुनिया बदलती रहती है। आज शायद मेरे ख्याल में दुनिया पाकिस्तान के इस दुगले किरदार को भी समझ गया है कि किस तरह वो मज़हब के नाम पर दूसरे मुल्कों में प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं, किस तरह अपने ही लोगों को उठाया जाता है, मारा जाता है। ये जद्दोजहद की कोई उम्र नहीं होती। और आप बोलते हैं कि मांगने के लिए बलोच को एक पानी का गिलास भी देने के लिए तैयार नहीं। सी पैक 45 अरब डॉलर में बनती है, लेकिन उस जिस शहर से तो ये पोर्ट बनती है उस शहर में पीने का पानी भी नहीं मिलता। तो ये सूरत हाल है। बाकी हमारा आज का टॉपिक है कि क्या फौज के होते हुए पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी का। पहले खुद पाकिस्तानी अपने आप को तो आज़ाद करवाएं अफ्रीकी की गुलामी से, बरतानिया की गुलामी से। 75 साल हो गए, आज भी आपकी मिलिट्री वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करती है, आज भी वेपन वहाँ से मिलते हैं आप लोगों को, रिक्रूटमेंट वहीं पे होती है, ट्रेनिंग वहीं पे होती है। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि इस फौज के होते हुए शायद आपकी न तरक्की होगी ना आज़ादी होगा। जी इफ्तिखार भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और कोई दोस्त अगर हाँ जी, जी आई होप मेजॉरिटी ने यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को मिसअंडरस्टैंड नहीं किया होगा। मैं आपको पहला मेरा सेंटेंस ये था कि मैं आज़ादी का बिल्कुल कायल हूँ, हर बंदे को हक है। और जो मैं कहना ये चाह रहा था कि मिनिमम लॉसेस के साथ आप अपने पर्पस पे काम करें, लॉसेस कम से कम होने चाहिए। और ये वाला जो है, जो भी है, ये वाला तख्ता मश्क ना छोड़ें। ये पॉलिटिकल तख्ता मश्क, अपने राइट्स को डिमांड करने वाला जो भी मूवमेंट्स होती हैं, इनके भी बहुत सारे रूप होते हैं। एक रूप में नहीं होती, सिर्फ फाइटिंग फोर्स नहीं होती, पॉलिटिकल फोर्सेस भी होती हैं और भी फोर्सेस होती हैं। उन पर भी काम जारी रखें, कभी भी स्टेप बैक ना करें। अपने जो भी आपके अंदर हैं, वो आपके जो भी नुमाइंदगान हैं, असल में सारे फ्रॉड हैं, लेकिन उनको भी आप प्रेशराइज करते रहें अपने राइट्स के लिए, इसको कभी ना छोड़ें आप। मैंने देखा है पॉलिटिकल ग्राउंड आपने बिल्कुल ही फारिग छोड़ दिया, पोलिंग स्टेशन पे कोई बंदा नहीं जाता, एटलीस्ट उस प्रेशर को भी कायम करें, वहाँ को खाली ना छोड़ें। वहाँ से आपको एक ना एक दिन, 50 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद बेहतर लीडरशिप तो मैसर आएगी ना। लीडरशिप के बगैर तो आपसे काम नहीं होने वाला ही। आखिर में जो भी रिजल्ट होगा वो पॉलिटिकल लीडर्स करेंगे और टेबल पे बैठ के ही करेंगे। अपनी लीडरशिप पे प्रेशर कायम रखें, पॉलिटिकल प्रोसेस में इन रहिए और अपने आप को ग्रूम तो करते रहिए, प्रेशर तो अपना कायम रखिए। ठीक है, राइट तो किसी को भी नहीं मिलते यार। मैंने ये पहले यही कहा है कि 1% माफिया में रूल करता है, सिर्फ उन्हीं को राइट्स मिलते हैं, बाकी सारे तो हम लोग कीड़े मकोड़े हैं इन लोगों के लिए। तो मैं खुद ये इस्टेब्लिशमेंट के शायद आपने मेरे जैसा पंजाबी नहीं देखा होगा, मैं खुद इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा नाला हूँ और मैं कहता हूँ ये हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉड करती है अपनी कौम के साथ, किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं है। जो टॉप पे जो होते हैं 2% वही रूल करते हैं। तो मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे बलोच भाई कम से कम शहादतें दें और इनको मैक्सिमम इनके राइट्स मिलें। 50-60 साल की ज़िंदगी होती है, ये सारी की सारी बेचारों की इसी स्ट्रगल में इधर को जान गुजारते बेचारे ना गुजर जाए। वैसे तो हमारी नौकरियाँ ढूंढ गुजर जाती हैं। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब जी। बिल्कुल हम आपने जब स्टार्ट में बात की थी, आसिफ बलूच हमारे साथ नहीं थे, लेकिन जहाँ तक आसिफ बलूच की बात है, जिस तरह उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जो बात आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के ज़रिए या पार्लिमानी जो इदारे हैं पाकिस्तान के सो कार्ड, उनके ज़रिए जो है आप अपने हकूक़ हासिल करने की कोशिश करें, तो वो डमीज़ और गुलाम जो खुद फ़ौज के कहने पे ऑर्डर पे चलते हैं, उनके पास वो लोग हैं वहाँ पर इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में जो एक काउंसलर की भी हैसियत नहीं रखते, उस लायक भी नहीं है, लेकिन वो इस वक्त सीएम बलूचिस्तान है। तो ऐसे लोग क्या हमारे हकूक़ देंगे? हमारी जो जद्दोजहद है आज़ादी की, और वो बेहतरीन एक रास्ता है, बेहतरीन एक स्ट्रगल है, और बलूच को हम उसके साथ लेके चल रही है और उस पे काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जी। डॉक्टर जी आप बात करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच रानी जी। बस मेरा एक क्लोजिंग कमेंट है, लास्ट कमेंट्स में करके फिर आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। देखिए, अभी कुछ देर तक एक कलमे के ऊपर डिस्कशन हुआ है कि जो कंट्री बना है ये कलमे की बुनियाद पर बना है। मेरा ऐसा मानना है कि कंट्री जो है वो कलमे या मंत्र से नहीं चल सकते, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। 75 साल की प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ का जो रिज़ल्ट है वो इस बात का सबूत है कि जिन्होंने कलमे के ऊपर या मंत्रों के ऊपर कोई कंट्री चलाए हैं तो उसका अंजाम आपने देख लिया है कि आज $100 बिलियन का कर्ज है और कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, और अंदर कंट्री के अंदर कोई न बिजनेस डेवलप हो पाए हैं, न इंडस्ट्री डेवलप हो पाई हैं, न स्किल्स डेवलप हो पाई हैं, न लोगों को जो कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कोई खास ट्रेनिंग दी गई है। सब लोगों को एक खास किस्म की डॉक्ट्रिन में लपेट दिया गया है कि बस हम इस तरह के हैं, हम तो बस ये हैं, हम तो बस वो हैं। तो एक तो ये पॉइंट मैं कहना चाहता था कि 75 सालों में ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये फेल ही है। इसका कई और भी एग्जाम्पल हैं कि जो जिन लोगों ने कलमे के बिना पे बनाया था वो लोग तो अलग हो गए हैं। 71 की वॉर में बांग्लादेश सबसे पहले तो वही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था, वो अलग हो गए हैं। फिर जो लोग अहमदियाज थे जो यूपी और बिहार एमपी से निकल के जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट दिया था, उनको तो मेन स्ट्रीम जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने उठा के फेंक दिया कि ना हम तो तुमको। तो कलमा अपने आप में कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है किसी कंट्री की बुनियाद का, ये एक कई तरह साबित हो गया है। दूसरा ये कि आज जो कलमा गो हैं वो बंदूक हाथ में लेके हजारों को बसों से निकाल के कहते हैं लाइन में लग जाओ। कौन कौन आ जा रहा है, कौन कौन बिना आ जा रहा है। हजारों को एक गोली से 10 लोगों को मार देते हैं। उन्हीं हजारों को जो कलमा गो हैं वो भी कलमा वही पढ़ते हैं, वो भी उसी नबी को मानते हैं, वो भी उसी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन ये बताएंगे कि कलमा गो कौन है। कुछ खास किस्म के बंदूकधारी लोगों के पास अल्लाह का सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, और वही बताएंगे कि वो अल्लाह को दूसरा नबी आने देंगे या नहीं। अल्लाह की हिम्मत नहीं है कि दूसरा नबी भेज दे, वो बताएंगे, क्योंकि बंदूक उनके हाथ में है। इसलिए आप कितना भी बोलें कि मैं भी मुस्लिम हूँ, नहीं, मेरे कहने से क्या होगा। मैं कितना भी या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कितना भी बोलता रहूँ, सुबह शाम 5 में करता हूँ, जब तक वो नहीं बताएगा जिसके हाथ में बंदूक है तब तक मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं इस्लाम होने का। ये बात वहाँ शियाओं पे भी लागू होती है, अहमदियाओं पे भी लागू होती है। जो बांग्लादेशी हैं जिनको सिर्फ इस बात से उठा के फेंक दिया गया कि ये तो बेकार बांग्लादेशी ये खाने वाले सब्जी खाने वाले या चावल खाने वाले लोग हैं, ये उनको 71 में बहुत हिकारत की नजर से देखा इन जनरलों ने बड़ा सुकून फील किया जब उस बांग्लादेश को हटा के, और जबकि बांग्लादेश के ऊपर वे भी मुसलमान थे, उनकी 3 लाख औरतों के साथ क्या क्या हुआ, ये ज्यादा कहने की बात नहीं है। बहुत खराब लगता है कल्ले ने इतने लोगों को मारा, वो भी सब कलमा को होते, यानी मतलब मुस्लिम्स ने मुस्लिम्स को मारा, इस कदर मारने में मजा लिया, उनकी औरतों को रेप करने में पूरा मजा लिया, सब कलमा गो थे। इसलिए मेरे दोस्त, कभी कलमाओं से या मंत्रों से कोई कंट्री नहीं डेवलप होते, न कौम डेवलप होती। यही वजह है आज $100 बिलियन का से ज्यादा का कर्ज है, हाथ में कटोरा है, मगर दूसरे हाथ में एक एटम बॉम्ब है कि अगर कोई नहीं देगा हमको, इसमें कशकोल में पैसे नहीं डालेगा तो हमारे हाथ में फिर दूसरे हाथ में ये है।
ये इस तरह से कंट्रीज नहीं डेवलप होते, यही इसलिए दूसरी डॉक्ट्रिन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अपने दोस्त PR साहब से कह रहा था जिन्होंने नई पार्टी बनाई है, नई सोच के साथ कंट्री बनाना पड़ेगा। ये मजहबी कार्ड ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि हर आदमी मजहब में तो ये कहेगा मैं तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं तुमसे बड़ा मुसलमान हूँ, मैं 5 बार पढ़ता हूँ, मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, मैं उस तरह से पढ़ता हूँ। मैं ये गलत तरीके हैं। आपको एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। लोगों को अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छे वैल्यूज, लोगों को एक दूसरों से कैसे रेस्पेक्ट लिया जाए, कैसे रेस्पेक्ट दिया जाए, ये वैल्यूज तो आएंगी। इनके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं तो हाथ में कशकोल हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज थैंक यू वेरी मच हानिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरा कोई कमेंट किसी को बुरा लगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी ओपिनियन यही है। थैंक यू, मुझे आपने अपने थॉट शेयर करने के लिए मौका दिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की है। जहाँ आपने जिस तरह बात की कि कलमे की बुनियाद पे या मंतरों की बुनियाद पे जो है वो मुल्क नहीं बना करते। जब हम इस मुल्क को देखते हैं कि इन्होंने क्या बनाया, कलमे की बुनियाद पे खुदकश इन्होंने तैयार किए। दुनिया में कहीं भी मरने और बचने के लिए किसी को अगर लोग चाहिए तो पाकिस्तान में इस तरह के लोग पैदा किए। छोटे छोटे बच्चों को जो है वो खुदकश हमलावर बनाया। फिर ये इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानियत की बात करते हैं। चंद दिन पहले मैंने एक ट्विटर पे एक न्यूज़ देखी कि अहमदियों के जो है वो कब्रिस्तान को कब जाकर खोदा जाता है, उनकी कब्र की लाशें तक निकाली जाती हैं। ये दावे होते हैं इस्लाम के और मुसलमानियत के। तो कोई शक नहीं कि कोई कंट्री या कोई मुल्क जो है वो इस्लाम की बुनियाद पर या किसी भी मजहब की बुनियाद पर अगर बनाया जाए तो कामयाब नहीं हो सकता। आज का जो हमारा टॉपिक था क्या फ़ौज के होते हुए पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी का ख्वाब पूरा हो सकता है। टॉपिक पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी का था, जिसमें हम बारहा ये कहते रहे कि बलूचिस्तान या जो आज़ादी पसंद कौमें हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से इस सॉरी उसका ताल्लुक जो है इस टॉपिक का ताल्लुक बलूचिस्तान से या सिंध से या कौमों से हरगिज़ नहीं है। हम यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तानियों की सोच को समझना चाहते थे, हम उस कौम की सोच को समझना चाहते थे जो दूसरों पर काबिज है। खुद कहाँ तक आज़ादी को या इंसानी आज़ादी को या ज़मीन की आज़ादी को या वतन की आज़ादी को किस हद तक समझती है। उनके नज़दीक ये आज़ादी क्या मायने रखती है। क्योंकि जब हमने अपने वतन की आज़ादी की बात की, जब हमने बात की कि बलूचिस्तान में जिस तरह के मुजालिम हो रहे हैं तो इन्हीं पंजाबियों ने हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए। बलूच कौम के लिए मुख्तलिफ आप भी यहाँ मौजूद थे और अक्सर जो दोस्त पाकिस्तान से तशरीफ़ लाते हैं वो पहला सवाल उनका ये होता है कि आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। हमें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, कभी मजहबी हवाले से दिए जाते हैं, कभी गद्दारियों के हवाले से दिए जाते हैं। जब हम आज़ादी की बात करते हैं, आज वही पाकिस्तान, मैं तो इसको आज भी पॉलिटिकल आज़ादी की ही समझती हूँ उनकी। आज भी मैं ये समझती हूँ कि ये कौम यूज़ हो रही है, ये कौम इस्तेमाल हो रही है। आज भी पाकिस्तानी उस आज़ादी को, उस मायने को नहीं समझते कि असल में आज़ादी कहते किसको है। आज भी ये कहीं इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं, कहीं नवाज शरीफ के लिए और कोई बिलावल और भुट्टो को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। तो इनकी आज़ादियाँ यहाँ तक महदूद हैं। मैं नहीं समझती कि ये आज भी आज़ाद है या उस आज़ादी को समझते हैं। आज़ादी जैसी नेमत से ये वाकिफ़ हैं कि आज़ादी क्या होती है। ये आज भी फ़ौज के ग़ुलाम हैं, आज भी ये उसी ग़ुलामी को कायम रखना चाहते हैं। आज भी ये चाह रहे हैं कि इन पे दस्ते शफ़क़त रखा जाए। जंग इनकी आज भी उसी लेवल की है कि फ़ौज किसके सर पर अपना दस्ते शफ़क़त रखती है और कौन आने वाले टाइम में इस पाकिस्तान पे जो पंजाब तक हम जिसे पंजाबिस्तान कहें या पाकिस्तान कहें वहाँ तक महदूद है, कौन हुकूमत करता है। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ रहे। मैं काफ़ी टाइम से हमारा स्पेस चल रहा है। डॉक्टर साहब आपका स्पेशली बहुत शुक्रिया। बहुत से दोस्त इफ्तिखार साहब और बहुत से दोस्त हमारे साथ शामिल थे जिन्होंने इस टॉपिक पर बात की और आप सबको हमने सुना, सीखा। अगर कोई और दोस्त बात करना चाहता है तो प्लीज़ आप लोग आए, बात करें। अदरवाइज़ फिर मैं तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगी कि काफ़ी टाइम से हमारे स्पेस चल रहा है। आसिफ बलोच आप अगर कुछ कहना चाहें लास्ट में, और डॉक्टर जे और इफ्तिखार साहब, अगर कोई दोस्त नहीं आते तो मैं लास्ट कमेंट्स आप लोगों से लेना चाहूँगी।
जी आसिफ बलूच, आप कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक को सामने रखते हुए? मैं चाहूँगी कि आप इस पर अपने दो लफ्ज़ों में इन ख़यालात का बताएं कि क्या फ़ौज के होते हुए पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी का ख्वाब पूरा हो सकता है? क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी जो है या पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ रखने वाली, मैं उसको पंजाबी कहूँगी, पंजाबी ज़हन कहूँगी, क्या वाक़ई वो आज़ादी को समझे हैं या आज़ादी की तरफ उनका रुझान है, या वो समझ रहे हैं आज़ादी होती क्या चीज़ है? आसिफ बलूच। आसिफ बलूच, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में आसिफ बलूच के नेटवर्क का इशू है। जी इफ्तिखार साहब, आप कुछ लास्ट कमेंट्स अपने इस स्पेस के हवाले से और इस टॉपिक के हवाले से कर देना चाहें? जी मैं आपकी बात सुन रहा था। आपने जो पंजाबियों के बारे में राय दी, मुझे माजी के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि पंजाबी किस तरह के लोग हैं। मैं खुद एक मिलिट्री बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ और पंजाबी हूँ। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पंजाबियों के अंदर या पाकिस्तानियों के अंदर काफ़ी चेंज आया है ये पिछले 8-9 महीनों में। इनके अंदर शऊर जो है ये अभी एक ऐसा कोई मिरेकलसली चेंज हो रहा है कि हमें खुद यकीन नहीं आ रहा कि यार ये कौम इस तरह भी सोच सकती है। मैं तो चलो हमेशा से ही एक मॉडरेट व्यू रखने वाला अपने मेरी नज़र में, मुझे नहीं पता मुझे लोग कैसा समझते हैं। बहुत सारे लोग मुझे समझते हैं शायद ये थोड़ा खिसका हुआ है, क्रैक है। तो मैं तो वैसे भी पानी के उल्टी समझ में भागने तैरने वाला बंदा हूँ। लेकिन मैंने देखा काफ़ी चेंज आ रहा है। लोग मिलिट्री के खिलाफ जो है, जो भी इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इसके खिलाफ बात करने की और सोचने की जरूरत करने शुरू हो गए। और बहैसियत कौम ये सोचने लग गए कि हमें चाइना या इंडिया या रशिया या अमेरिका क्यों डिक्टेट करे, हमारी कौम अपने फैसले खुद क्यों ना करे, हम भिखारी क्यों बने रहें। क्योंकि भिखारी हम कौम तो भिखारी है नहीं। ये जो अशराफिया है ये इनके रिसोर्सेज, बलोचों के रिसोर्सेज, पठानों के रिसोर्सेज इनको बेच के खा रही है, या पंजाबियों की मैन पावर इसको गुलाम बना के रखा हुआ है। खा तो अशराफिया रही है, अवाम तो बेचारी सिर्फ गुलाम है कैद खाने में। जैसे बेगार कैंप में कैद कर लो और उनको रख लो। जेल है, बहुत बड़ी जेल है पाकिस्तान। आप पंजाबियों को आप अपने से ज़्यादा मजलूम समझा करें। ना सिर्फ आपको एटलीस्ट मेंटली तो अवेयरनेस है ना कि आपके साथ जुल्म हो रहा है। पंजाबियों को तो ये भी अवेयरनेस नहीं थी। वो तो एक मुर्गी खाने के अंदर, एक पोल्ट्री फार्म के अंदर जिस तरह चूजे होते हैं वो उस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन बेचारों ने अभी थोड़ा थोड़ा देखा है यार कि यार अपने राइट्स क्या होते हैं और आज़ादी क्या होती है। चाहे हो सकता है इमरान खान सिंसियर ना हो या जो भी हो, पहली दफ़ा कोई बंदा इनको बता रहा है कि यार कौम होती क्या है, तो ये भी बड़ी बात है। मैं तो इसको इस बारे में काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ कि चलो कुछ न कुछ लोग जाग रहे हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा मुझे नहीं पता। मुझे तो मैं वो तरह से देखता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ पूरे रीजन को वार में धकेला जा रहा है जिसका पूरे रीजन को नुकसान होगा, इंक्लूडिंग इंडिया और चाइना और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सबको लॉस होने वाला है। मैं तो उस तरह से देख रहा हूँ। लेकिन जो भी है, कौमें पिस की कौमें बनती हैं। अय्याशी भी पढ़ेंगे तो क्या कौमें बनेंगी, अरबों का क्या हाल है सबको पता है। तो पिसना तो पड़ेगा, मार तो खानी पड़ेगी। तो गुड लक है मेरे लिए, है मेरी तरफ से सारे भाइयों के लिए। मेरे लिए इंसान कोई भी हो, चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी मज़हब का हो, वो मेरे इतना ही मोहतरम है जिस तरह मेरी अपनी जान और इज़्ज़त। तो मेरे तमाम नेक तमन्नाएँ और दुआएँ बलोचों के लिए। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई और बाकी सब दोस्तों का जो हमारे साथ रहे। पाकिस्तान की सियासत पे हमारी नज़र रहती है, जिस तरह पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे मिल रहे हैं, इस तरह बलूच सियासी कारकुन पाकिस्तान की अंदर पेश आने वाले जो मामला हैं उन पर भी नजर रखना चाहिए। तो उनकी सियासत किस तरफ चल रही है। उन्हीं में से काफ़ी अर्से से, जैसे 7-8 महीनों से एहसास हुआ है हम गुलाम है, और फिर इन्होंने हकीकी आज़ादी का एक नारा लगाया। वो आज़ादी भी वो खुद अपने लिए चाहते हैं। वो बलोचों को आज भी बलोचों की तहरीक के खिलाफ रखते हैं, वो मिसिंग पर्सनस के इशू पे साथ नहीं देते। लेकिन अगर वो चाहते हैं उनकी आज़ादी मुकम्मल हो तो उनको कम से कम अपनी इस तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ानी होगी। तो उनको भी उठना पड़ेगा, उनको भी मिसिंग होना पड़ेगा, उनको भी एहतजाज करना होगा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें
जो किसी भी जद्दोजहद के लिए ज़रूरी। हाँ, अगर ये कोई 4 साल 5 साल की इक़्तिदार के लिए है, लूट-मार के लिए है, तो पाकिस्तान ने कभी जमहूरियत बना था, न बनेगा, और न ये मुल्क कायम रहने के लिए बना था, न रहेगा। इस तरह के मज़ालिम होंगे तो मजबूर मकाम की जद्दोजहद इस इंतज़ार में नहीं बैठेंगे कि पंजाब के लोगों को ये एहसास हो या ना हो, बल्कि हमें अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान के हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, जो दुनिया में मामला चल रहे हैं, बदलती हुई सूरत हाल है, उसको बलूच के किरदार को दुनिया के सामने लाएँ, और इस खत्ते में जो महकूम अक़वाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जुड़े, अपने मौक़िफ़ मज़ीद वाज़ेह करें, मज़बूती के साथ आएँ। यही वक़्त है कि अगर हम आज़ादी की ख्वाहिश रखते हैं या आज़ादी की ज़रूरत से वाबस्ता हैं, तो इस वक्त एक बड़ा बेहतरीन मौका है कि हम अपनी बातों को, अपने फैसले को आगे बढ़ाएं। मैं चाहूँगा आमिर बाश और ये मुस्ताक़ हैं। आमिर बाश साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जी। सब स्पेस के साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। आप जी, अमिर बाश साहब, आपको शायद कोई कॉल आया या कोई मैसेज आया, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। जी, आमिर से जुड़े, मैं चाहूँगा कि कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे, और यही है कि एक पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए भी, अगर वो अपने लिए आज़ादी, अपने सियासी हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, तो उनको इतना एहतराम दूसरे कौमों की सियासी तहरीकों का भी होना चाहिए। जो भी जुल्म सितम हुआ है उसको कंडेम करना चाहिए, और जी नस्ल की जो बलूचिस्तान में जारी है उसको रोकने की बात की जानी चाहिए, और बलूच एक्टिविस्टों के हवाले से जो इस तरह के प्रोपेगेंडे वो करते हैं, इससे निकले, लॉजिकल डिबेट करें, बलूचों के साथ अपनी बात रखें। आप हमारे टॉपिक पे एग्री करें, डिसएग्री करेंगे, ज़रूरी नहीं है आपके खिलाफ होना चाहिए। तो यही मकसद है कि अवेयरनेस फैलाना है, कम से कम लोगों को इस बात पे राज़ी करना है कि वो बैठें और बातें, मसाइल पे डिबेट करें। आमिर साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप प्लीज़ बात करें, और फिर अगर लास्ट में कोई और दोस्त भी ऊपर आना चाहते हैं तो ज़रूर आज के टॉपिक पे या आज डिस्कशन हुई है उस पर कोई बात करना चाहते हैं, वो ज़रूर आपको सुनना चाहिए। नहीं तो फिर उसके बाद हम आपके केस को एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि फिर आपके साथ जुड़ेंगे। जी आमिर। जी आमिर साहब, अनफॉर्चुनेटली आप हमें सुन नहीं पाए। आप कोशिश करें, हमारे जरूर सब तरीके से सुनते हैं रहते हैं, तो आपको प्रोत्साहन मिले, ज़रूर इनमें हिस्सा लें। दोस्तों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे, प्लीज़ एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और फॉलो जहाँ पे भी है दुनिया में जुड़ें, अपने वतन की बात को आगे बढ़ाएं, अपनी तहरीक का हिस्सा बने, और जो भी मसाइल हैं, मुसीबत के इश्यूज़ हैं, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और बलूच कौम के वारिस बने। हमारे जो नौजवान हैं उनका किरदार है, आने वाले दिनों में उनके भी टॉपिक रखेंगे कि नौजवानों का किसी भी तहरीक में या कौमी हिस्ट्री को बदलने में इतना अहम जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पे होती हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। जी, इस तरह तब आपने हैंड रेज़ किया, आपको शेयर करना था। हाँ सर, मैं अभी आपकी इसी बात से मुझे याद आया, शायद दोबारा पता नहीं चांस मिले बात करने का ना मिले, लेकिन आपकी यकीनन आपस में एक नेटवर्किंग होगी, बॉन्डिंग होगी, तो हो सकता है आप ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हो, लेकिन मेरी ये सजेशन है कि आप नहीं कर रहे तो अपने बॉन्ड को मजबूत करें, नेटवर्किंग को मजबूत करें, और जो भी आपके शुहदा हैं उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, और मैक्सिमम सपोर्ट करें, और अपनी कम्युनिटी की वेल बीइंग के लिए जितने भी ओवरसीज़ हैं एटलीस्ट, या जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं वो काम करें, इस चीज़ को बढ़ाएं प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस पे काम करें। थैंक यू।
जी, बहुत शुक्रिया, बहुत पॉजिटिव सजेशन है। यकीनन हमें कौमी तहरीक एक बहुत बड़ी तहरीक है और हमारे जितने भी साथी हैं वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं अपने कम्युनिटी के हवाले से जितने भी मसले मसाइल हैं और उनको एक दुनिया के भी सामने ला रहे हैं कि आपस में भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका सजेशन भी बहुत अच्छा है कि बलोच जहाँ भी बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के बाद वो अपने लोगों को संभालें और खासतौर पे शहीदों की जो फैमिलीज हैं उनके बच्चों की जो पढ़ाई है या दूसरी ज़रूरियात हैं उस हवाले से हमें कम से कम अपने आसपास पड़ोस में अपने घर में देखना चाहिए कि इन बच्चों को हमारी ज़रूरत होती है, उनके तालीम के लिए उनकी दीगर ज़रूरत के लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है और जुड़ने की ज़रूरत है। काम बहुत है, सिर्फ अमल करने का जज्बा हो। आप किसी भी रियासत को पैगाम देना चाहते हैं, किसी अपने अपोनेंट को, तो उनको सबसे बेहतर जवाब आप अमल से ही दे सकते हैं। अमल पे यकीन करें, अमल मुखलिसी के साथ और खुलूस के साथ वो ज़रूर फल देता है, आगे आपकी सोच को फैलाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अमल के लिए तैयार हो। किसी भी काम को छोटा या बड़ा न समझें। हर काम की अहमियत है कौम के लिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, लिखते हैं, कुछ बोलते हैं या अवेयरनेस फैलाते हैं तो ख़ासतौर पर जो दोस्त हमारे साथ बाहर से जुड़ते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बलूचिस्तान कॉज को सोशली और मॉरली सपोर्ट करते हैं तो कम से कम अपने आसपास के लोगों को बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात से आगाह करें। अब बलूचों की तारीख के बारे में अपने दोस्तों को, साथियों को अवेयरनेस दें और जिस तरह की इंसानियत की पामालियाँ बलूचिस्तान में हो रही है उनके हवाले से अगर आप दुनिया किसी मुल्क में नहीं जा सकते तो अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में बलूचिस्तान की बात करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी, हमारे लिए एक बहुत बड़ी सोशल और मॉरल सपोर्ट होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के दीगर जो बाकी अफराद हैं वो हमें सोशली और मॉरली सपोर्ट करें। और जो हम बलोच आपस में बैठते हैं जो तो हमारे दोस्त इस वक्त सोशल मीडिया पे नहीं है, कोशिश करेंगे कि उन दोस्तों को भी ट्विटर पे लाएँ। ट्विटर एक इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर से सियासतदान आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं। अपने साथ कुछ आईडीज़, कुछ अकाउंट्स नोट करें। फॉर एग्जांपल जो दुनिया के बड़े-बड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दुनिया की जो बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यूएस की 2-3 पार्टियों के टेंडर्स देखें, उनके सेनेटर्स के, उनके डिप्लोमेट्स के। तो इसी तरह की छोटी सी डायरी रखकर जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन और ज़रूरी डेटा है उसको अपने पास सेव रखें और जब कोई मिसिंग पर्सन का इशू आता है या कोई फेक इनकाउंटर बलूचिस्तान में होता है उनको उन अकाउंट को आप अपने ट्वीट्स में मेंशन किया करें। और हमारा पहले दिन से स्लोगन यही है कि खामोशी को मौत समझते हैं और चुप रहना नहीं है। अपनी आवाज़ की अहमियत को, अपने किरदार की अहमियत को ज़रूर समझना चाहिए कि एक इंसान भी अगर तब्दीली के लिए हक के लिए खड़ा होता है तो फिर उस काफ़िले में और कई दोस्त, कई साथी उसको मिलते जाते हैं और इसी तरह काफ़िले बढ़ते हैं। पंजाब में आबाद बलूच उनको चाहिए कि वो बलूचिस्तान की तहरीक के लिए आवाज़ बने, बलूचों के अपने वतन की तहरीक के लिए किरदार अदा करें, अपनी शनाख्त को समझें। सिंध के जो बलूच हैं वो होते मज़ीद मुत्तहद हों, मुनज़्ज़म हों। ईरानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में जो बलूच आबाद है, अफगानिस्तान में जो आबाद है, दुनिया में कहीं भी हमें कोई बताता है कि यहाँ पे बलूचों के 2 घर, 4 घर हैं तो हमें उन घरों तक भी पहुँचने के लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और इसके लिए हमें ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है कि जो नेशनलिज़म के प्रीचर्स बने, जो नेशनलिज़म की प्रचार करें और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझ कर अपने तहरीक में एक मजबूत ऐसा नज़रिए के साथ शामिल हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। बलूचों को यकीनन सच्चाई पे मबनी केस है। 1948 के कब्जे से लेकर आज तक ये जो हक पे है अभी सबकी आवाज़ आप तक पहुँची है, मुझ तक पहुँची है। हम सब मिलकर इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं। अपने शोहदा को न भूलें, उनके किरदार पे लिखें, उनकी कुर्बानी पे लिखें और उन शोहदा के
फैमिलीज वालों को न भूलें और अपने उन साथियों को, उन स्टूडेंट एक्टिविस्टों को, उन पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को जो बलूचिस्तान की आवाज़ बुलंद करते करते रियासत की दस्तूर और कानून में जबरी गुमशुदगी का सामना कर रहे हैं, उनके हवाले से मजीद मुलज़िम होने की ज़रूरत है। कोई भी मिसिंग पर्सन्स का केस आपके आस पड़ोस में होता है, अगर उनके पास ये फैसिलिटी नहीं कि वो ट्विटर पे हैं या वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उनको आप गाइड करें कि वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स का कैंप कोयटा प्रेस क्लब के सामने अभी कराची में है, लेकिन उनके अकाउंट भी यहाँ पे हैं, तो उनसे रब्ता करके अपना केस रजिस्टर करवाएं और जो उनकी गाइडेंस होती है उसी के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरों में शरीक हों और ऐसे किसी भी अमल का हम हिस्सा बनकर अपने कौम की खिदमत कर सकते हैं। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, सियासतदान हैं, इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, कोई भी है, कौमी तशकील में, कौमी आज़ादी की तहरीक में हर किसी की एक इंतहाई अहम जगह उनके लिए मुख्तस होती है। तो इन किरदारों में से हमें कोई एक किरदार बनकर अपने कौम की खिदमत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो हमारे साथ इतने देर तक रहे और अपना ख्याल रखिए, मेहनत जारी रखें, अपनी खर्चा जारी रखें। हमारे डीएम्स खुले होते हैं, किसी भी किस्म की किसी दोस्त को कोई शिकायत हो या कोई आप ऐसा टॉपिक लाना चाहते हैं जिस पर आप समझते हैं कि बात करना ज़रूरी है, वो हमें डीएम करें। कोई और मुश्किल हो, परेशानी हो, हमें ज़रूर डीएम कीजिएगा, हम हैं कि हम साथ हैं। और आज एक और स्पेस भी होगा 9 बजे 10 बजे के करीब हम उसमें शामिल होंगे, तो ज़रूर लिंक भी शेयर करेंगे। ईरान में जो हमारी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है वहाँ ये स्पेस मुनक़्क़िद होगा, तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उसमें शामिल हों और वहाँ की जो हमारे बलूच भाई हैं, बहनें हैं, उनको ये यकीन दहानी कराएं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, हम इस दुख की घड़ी में सभी वक्त में हम उनके साथ हैं। तो उस स्पेस में भी कोशिश करें कि अपने ज़रूरियात से फारिग हों और सब लोग शामिल हों। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। अली बलूच आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चे का कुछ स्पेस कंडक्ट किया और हमारे जो लोग टेक्निकल टीम है इसको फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव चला रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमें हेल्प करते हैं। तो बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं कि आपको सब मिन्नतवार